Hello, dear aspirants. A very warm welcome to all of you. My name is Sonika Saini. So, as you must have seen on the thumbnail, this is regarding UPSC, EPFO, APFC detailed strategy. And you know that the notification is out with 80 vacancies. ठीक है? हमने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है. That is about the little bit about the exam pattern, the number of questions, सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं, and what shall be the priority subjects in accordance in the decreasing order. ठीक है? Or yes, this you can say the second part of that video. You can watch that first part also. So I want to give you a little disclaimer before I start my session. The very first disclaimer is that if you're really serious about this particular examination, तो एक तो पूरा video देख लेना. Because this has taken a lot of analysis, research work, right? On the PYQs, on the syllabus compartments, सबसे ज़्यादा questions कहाँ से आते हैं, and also the various YouTube videos. ठीक है? So I've watched the various YouTube videos and I can say that this is going to be very fruitful for you if you're going to see it, right? Then there are aspirants who do not have a UPSC background, right? And they, like for example, banking aspirant and SSC aspirant. So we will deal separately with them. वैसे तो मैंने already एक video बनाया हुआ है that is about that what are the edges that have UPSC aspirant has and non-UPSC aspirants के अलग से leverage है, तो वो आप जाके देख सकते हैं. But since this is regarding our syllabus, the bifurcation of the syllabus, I have attached various PYQs also so that you are able to know that what kind of questions they are asking. Because usually क्या होता है, जो SSC और बैंकिंग एस्पिरेंट्स होते हैं उनको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ठीक है हमने सिलेबस तो कर लिया, बट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, right? What are the pattern of the questions that are coming? So I've attached 2-3 questions for the each you can say subject or you can say the topic that is related. ठीक है? और तीसरी चीज, if you are interested in subscribing our course, आपको सारे के सारे links, जो भी available links हैं या जो भी available courses है, type of courses है, you will get that in the pinned comment. ठीक है? So let's start. ठीक है? मुझे एक बार अपना plan of action बताना है आपको. ठीक है? See, our plan of action in this video would be, okay, so that is related to our all the subjects. अब usually क्या हो रहा है, सब लोग subjects बता रहे हैं which you can easily find out, but I'm not going to tell you the topics and subtopics, वो आप easily आपको पता होते हैं. I'm going to tell you that what are the most repeating topics based on the PYQs. ठीक है? बहुत सारे ऐसे topics होते हैं, राइट, जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, फिर से रिपीट होते हैं स्पेसिफिकली इन योर स्टैटिक पोर्शन ऑफ योर सब्जेक्ट. सो वी विल डील विद दैट फॉलोड बाय PYQs. देखो PYQs सॉल्व नहीं होंगे, बस एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, उसके 2-3 PYQs देखेंगे. किस किस में आपके स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस किस में आपके वन लाइनर क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस किस चैप्टर और सब्जेक्ट्स में आपके क्या आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स. ठीक है? यस, देयर आर न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. ठीक है? कैसे? Then we will come out that how to prepare. This was what? Then we will deal with how to prepare this examination with respect to the number of days we have, with respect to the subjects that shall be at your priority list, and how you are going to plan it in this coming days. I'm not going to tell you schedule. You're quite wise and intelligent enough कि आप अपना schedule खुद बना सकते हैं कि कितने days में मुझे क्या करना है depending upon your strengths and weaknesses. But I can tell you the broader aspects that what are the subjects that shall be covered earlier, and then second priority पे कौन सी होनी चाहिए, third priority पे कौन से. So without telling अभी बहुत सारी चीजें, I shall start my video. ठीक है? So let's start. Okay, so these are the 10 core subject areas. ये मैंने last video में भी discuss किया था. Still I will, ठीक है, for the first covers I will tell. So यहाँ पे आपका general English आता है. The general English is not as banking English जिसमें आपका normal one liners vocab या one liners grammar आती है. It's not like that. Neither it's like UPSC जिसमें आपके comprehensions आते हैं that test your aptitude and logical reasoning abilities in the comprehension itself, right? So I will tell you the questions, आपको समझ में आ जाएगा with the syllabus. Secondly, there is Indian freedom struggle, culture and heritage. So Indian freedom struggle, that is your मोटा modern history, जिसको हम modern history है, starting from the advent of Europeans to our congregations and to the struggles to the independence. ठीक है? Culture and heritage. So अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ancient और medieval history का ऐसा यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री, देखो आपको भी पता है कि आर्ट एंड कल्चर ऑफ एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री आपको तभी समझ में आता है व्हेन यू नो द टाइमलाइन एंड क्रोनोलॉजी ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स.
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चंस आए हैं. इफ आई सी 2025 PYQs, नो डाउट आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं. बट अगर मैं थोड़ा सा 23 में जाती हूँ, दे हैव आस्क्ड द क्रोनोलॉजी ऑफ द डायनेस्टीज. नॉट द डायनेस्टीज इज कोर एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री. बट कितना पोर्शन कैसे, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी आई एम टेलिंग यू द सिलेबस. ओके, नाउ current affairs and development issues that obviously covers the national and international developments. Okay, then Indian economy, the basics economy principles. ठीक है, अब आप इसको देख के घबराना मत कि अरे भाई इकोनॉमी भी पढ़नी है, ठीक है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट हैज अ चंक, whether it's 2%, whether it's 5%, and our strategy will be determined based on them. For example, economy has hardly 3 to 4 questions, जिसमें से core जो economics होती है उसमें से there is hardly 1-2 questions. Mostly the economics is relying on the recent developments. I'll show you the PYQs. Okay, now तो आपको पता ही होगा दैट आर ईपीएफओ रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं. दैट इज जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल्स. ठीक है, दैट इज जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल्स दैट डील्स विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस. वेट अ मिनट. ठीक है, दैट डील्स विद ऑडिटिंग ऑल्सो, एंड यहाँ पे इंश्योरेंस आना चाहिए था, आई थिंक मिस हो गया है. सो दैट डील्स विद द इंश्योरेंस. सो ये एक सेपरेट आपका सब्जेक्ट है इंश्योरेंस. ठीक है, 3-4 चैप्टर्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते. ऑडिटिंग का भी बिल्कुल थ्योरी है. ठीक है, एंड बेसिकली मोर ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम अकाउंटिंग. ठीक है, आप देख सकते हैं पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन किया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं. देन व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट आर स्टेबल इन नेचर, स्टैटिक इन नेचर, कि अगर 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के आएंगे तो आएंगे ही, 15 क्वेश्चंस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस के आएंगे तो आएंगे ही. ठीक है, 15 क्वेश्चंस would be of quant and reasoning. So इस तरीके से आप देख लेना. फिर आता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, और आई कैन से कोड्स, क्योंकि अभी दे हैव कन्वर्टेड इनटू कोड्स. ठीक है, now this is the most important chunk of the EPFO related examination. Not only the static aspect, but 1 to max 3 questions comes also from the dynamic nature as well. ठीक है, क्या होता है. so अगर, ठीक है, see there is a lot of confusion कि what is industrial relations, right, what are labor codes, क्या हमें पुराने वाले भी करने हैं, क्या हमें नए वाले भी करने हैं. ठीक है, what is social security, मैं आपको ये बहुत बार बता चुकी हूँ. there is a link, ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगी कमेंट बॉक्स में with the title. there is a video that is a very detailed video that talks about the syllabus कि हमें क्या पढ़ना है, इन सब में क्या होता है और किस तरीके से पढ़ना है. हाउ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी आर रिलेटेड टू द लेबर कोड्स. ठीक है, एंड सोशल सिक्योरिटी ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स. वो हम सिलेबस में भी बताएंगे थोड़ा सा. लेट्स develop more the quant and mental ability. Mental ability is, you can say in normal language, normal parlance, it is reasoning questions. reasoning questions ज़्यादा नहीं आते हैं, quant के ज़्यादा आते हैं. देखो, let's say अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, so you can say 3 to 4 of mental ability and 9 to 10 questions of quant. Then general science. Now this general science is not as small as it is visible. So it is PCB, that is physics, chemistry and bio. ठीक है, अब इसमें भी मैं डिस्कस करूंगी कि क्या चेंज आया है 23 और 2025 के PYQs में. द वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग, यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट. ठीक है, सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के किस टाइप के क्वेश्चंस 23 में आए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस 2025 में आए हैं, और वी कैन एक्सपेक्ट कि 2026 में कैसे आएंगे. ठीक है, चलिए. देन कंप्यूटर एप्लीकेशंस. ठीक है, ये आपका मोटा मोटा यही आपका इस तरीके से आपका EPFO का ऑफिशियल जो सिलेबस है दैट इज बीइंग गिवन. सो कंप्यूटर एप्लीकेशंस इज लाइक बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क एंड SSD क्या होता है, ऑल ऑफ दैट विद द एप्लीकेशंस, व्हिच मींस से यू कैन से लेट्स से ChatGPT, इट इज एन एप्लीकेशन. ठीक है, आई मीन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, नॉट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, तो ये हो गए आपके सब्जेक्ट्स. नाउ लेट्स डेवलप इट मोर. One second. ठीक है, तो सबसे पहले आई हैव बॉट इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस फॉर यू. ठीक है, एक सेकेंड. इज दैट विजिबल? या तो पहले तो आप वो डिटेल वीडियो जाके देखेंगे कि क्या है उसके अंदर. अब देखो, व्हाट आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. वन मोर थिंग, यहाँ पे एक्ट मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है, दैट वर बेस्ड ऑन द एक्ट.
ठीक है, दैट वर बेस्ड ऑन द एक्ट। क्या ये अभी एक्ट्स है? नो, देयर नो मोर एक्ट्स, ठीक है। ऑल दोस 29 लेबर लॉज, right, or you can say the acts has been converted into 4 labor codes. Now these 4 labor codes have various chapters. For example, we have code on wages, correct? ये पूरा समझाया मैंने, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूंगी ताकि आपको समझ में आए। Now in that code on wages we have 4 chapters. We have various chapters but I'm telling you the 4 minimum चीजें, जैसे for example चैप्टर्स तो देखो 7-8 है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द 4 कोर एरियाज, दैट इज मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, एंड ये 3 है मेनली, एंड देन इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। तो ये सारे पहले एक एक्ट हुआ करते थे, अब इन एक्ट को मर्ज करके कॉर्ड ऑन वेजेस बना दिया। नाउ दैट हैज सर्टेन चैप्टर्स, फॉर एग्जांपल डेफिनेशंस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई मीन टू से दैट, ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैम बोल रही है कि आपको ओल्ड एक्ट्स करने हैं, since that is in the previous based questions, तो इस तरीके से यहाँ पे acts लिखा हुआ है, otherwise you don't have to do previous acts. What you have to do is the labor codes. Ministry of Labor and Employment पे जाओगे, वहाँ पे 4 आपको codes मिलेंगे. In that if you click, you will find the exact provisions, sections, subsections और bare acts. ठीक है, चलिए, I hope you ignore this thing. ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू में देखेंगे वहां पे मेंशन क्या होगा, एज पर द ट्रेड यूनियंस एक्ट, बिकॉज जब ये एग्जाम हुआ था द इम्प्लीमेंटेशन वाज नॉट स्टार्टेड। ठीक है, तो वेरी क्लियरली ओल्ड लॉज हमें नहीं करने हैं। यस, इन सर्टेन एस्पेक्ट्स ओनली हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसका, ओल्ड वर्सेस न्यू कोड्स का, दैट्स इट। मे बी दे अ क्वेश्चन ऑफ 1 or 2 कैन आस्क कि अब क्या चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड एक्ट्स या ओल्ड लॉज। ठीक है, नाउ लेट्स रीड इट आउट। इट्स टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है, मिनिमम वेजेस, फैक्ट्रीज एक्ट, payment of gratuity act, right, and then industrial disputes act, maternity benefit, employment compensation, trade unions, contract labor, interstate migrant and child and adolescent labor act. So see what is happening कि हमारे ये सारे मर्ज हो गए हैं कोड्स, वेरियस कोड्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एंड ट्रेड यूनियंस एक्ट, वी हैव अ कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो ये दोनों आपको एक ही उसमें मिलेंगे कोड में। सिमिलरली मिनिमम वेजेस एंड पेमेंट वेजेस आपको क्या मिलेंगे, एक ही आपको कोड में मिलेंगे। ठीक है, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल पीएफ एंड व्हाट इज द कंपनसेशन, कहीं तो होगा, ठीक है, तो वो आपको मिलेंगे किसमें, देयर इज अ कोड on social security. In fact, payment of gratuity is also in the social security. तो these are those topics जहाँ से सबसे ज़्यादा questions आ रहे हैं. Last time there were 2 questions from the payment of wages, right? And Factories Act या factories, ठीक है. Then payment of gratuity, यहाँ से भी question आता है. Sometimes numerical question आता है, ठीक है. Numerical पूछ लेते हैं कि आप calculate कीजिए कि कितना जो आएगा, ठीक है. Compensation, I don't know where it is. Yes, this compensation, ये वाला employees compensation. Now, last time यहाँ से एक numerical आया था, कैसे कि they ask you कि भाई देखो ऐसा ऐसा इंसान है, उसका आप compensation निकालिए in case of any kind of, अगर वो job से relieve होता है तो आपको ये आपको ध्यान में रखना है कि these are certain, right? These are certain topics which are important for this. अब एक disclaimer और फिर से कि अगर आप bare acts पढ़ने जाओगे, it is very very tough. ठीक है, आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, पहले आप इस लैंग्वेज को डिकोड करोगे, डिकोड करने के बाद आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसको क्रैम करोगे, और क्रैम करने के बाद आप यू विल सी व्हाट आर द पीवाईक्यूज एंड द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, दैट इज व्हाई देयर इज अ डेडिकेटेड कोर्स, राइट? आई विल बी टेकिंग द इंडस्ट्रियल लेबर, सोशल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट, ठीक है, इवन इफ यू वांट टू डू सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन, बट दिस इज मस्ट कि आप यहाँ पे अपना खुद का एफर्ट और एनर्जी बचाओ, ठीक है। एंड वट एवर द कोर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वीडियोज विद द टाइप ऑफ कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग इट इज वेरी सफिशिएंट इन नेचर एंड आई कैन गारंटी यू फॉर दैट। ठीक है, आई विल बी टीचिंग टेकिंग द वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, अब देखो जब हमारा ये सारे, ठीक है, मिक्स होके आपके क्या बनते हैं, मिक्स होके आपके क्या बनते हैं, लेबर कोड्स बनते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। देयर कम द इंडस्ट्रियल रिलेशन सेक्शन। अब जो इंडस्ट्रियल रिलेशन सेक्शन है उसमें मेजरली आपके क्या आते हैं, थियोरीज आती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, व्हाट इज स्ट्राइक, व्हाट इज लॉकआउट्स, राइट, द वेरियस अप्रोचेस लाइक गांधीयन अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोचेस, द अप्रोचेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम्स अप्रोच एंड ऑल ऑफ दैट। अब 23 में वहां से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 2025 में एज सच कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला।
क्या इसका मतलब ये है कि हम नहीं करेंगे? वी हैव टू डू द थ्योरी, बिकॉज उस थ्योरी का एप्लीकेशन ही ये सब चीज़ें हैं। तो आपको बेसिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, भले ही आप उसको बाय हार्ट क्रैम ना करें, बट दैट इज नॉट मीन कि क्या पता 1-2 क्वेश्चन फिर से INI आ सकता है, ठीक है। देन थर्ड थिंग, सोशल सिक्योरिटी। 3 चीज़ें ना, लेबर कोड्स, IR, सोशल सिक्योरिटी। नाउ व्हेन इट कम्स टू द सोशल सिक्योरिटी, तो 2 चीज़ें आपको करनी होती है। 1 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। 1 मैं आपको समझा देती हूँ फिर से, हौच-पौच हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1 इज लेबर कोड्स, ठीक है, जो अभी हमने बताया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये है, और भी है, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली चाइल्ड लेबर, मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है। बात अगर हो रही है इक्वल रिमरेशन की, बात अगर हो रही है लेबर की, उसकी प्रोटेक्शन की, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन प्लस इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो अभी आपको बताया, इसका पूरा सिलेबस वगैरह उस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि और क्या होता है उसमें, ठीक है। देन वी हैव SS, व्हिच मींस सोशल सिक्योरिटी। सो वी हैव अ डिफरेंट कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, अभी आपको बताया, जिसमें कॉम्पनसेशन और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी और ऑल ऑफ है। Plus, it will have one more aspect, and that is government schemes. Why? Because there are various government schemes. देखो, ये तो हो गया आपके codes, ठीक है, जो ऑब्वियसली अप्लाई होते हैं, बट देन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कम्स ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। तो मैं अभी आपको इसके PYQs दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, सो ये थोड़ा सा ब्लर चीजें हो सकती है, राइट, बिकॉज डायरेक्टली जो है हमने इसको कट आउट लिया है। चलिए, सो द मैंडेट ऑफ गिविंग अ नोटिस ऑफ 6 वीक्स। देखो, अब यहाँ पे एक्ट लिखा हुआ था, है ना। वाई? बिकॉज ये प्रीवियस है, ये ओल्ड है, ठीक है, ये ओल्ड है। ओल्ड में आपके वर्ड एक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, अभी आपके यहाँ पे एक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। देयर विल बी जस्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एज अ चैप्टर। सो टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पीपल, राइट, दैट मीन्स दे आर सेइंग विच, किन कैटेगरीज पे जो ये आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। इज इट वर्कमैन एम्प्लॉयड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज और एम्प्लॉयर्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बिफोर लॉकआउट। अब देखो, आप लॉकआउट कहाँ पढ़ोगे? आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस की थ्योरी में पढ़ोगे कि ये क्या होता है। वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एनी सर्विस बिफोर गोइंग फॉर अ स्ट्राइक, सो यू मस्ट बी हैविंग अ डिफरेंस, राइट। हमें यूजुअली लगता है स्ट्राइक और लॉकआउट एक जैसी चीज है, बट ये एक जैसी चीज नहीं होती है। ये हम थ्योरी में पढ़ते हैं, किसमें? इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। अब आप ये देखिए, व्हाई हैव ब्रॉट द PYQs, आपको ये समझना पड़ेगा कि the type of questions they have asked, there are statements and then there are options, ठीक है। देन फॉर एग्जाम्पल, ये अब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का फर्स्ट जो शेड्यूल है, राइट, किस में से नहीं लगता है, राइट, नॉट। अब आप देखिए, एक और चीज है, यहाँ पे क्या हो गया? वन लाइनर हो गया, ठीक है ना। पेमेंट ऑफ वेजेस पे देखो, 2 क्वेश्चन आए हुए थे। पेमेंट ऑफ वेजेस पे they've asked this, so they've asked what are the kind of deductions। जिसने चैप्टर देखा होगा उसको समझा होगा कि there are various deductions, कौन कौन सी डिडक्शंस आप कर सकते हो। देन दिस इज ऑल्सो अबाउट पेमेंट ऑफ वेजेस, हाउएवर दिस इज नाउ नल एंड वॉइड, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा में बोलते हैं, क्योंकि ये वाली जो 1000% वाली जो चीजें हैं वो भी हट गई है, ठीक है। इट इज टॉकिंग अबाउट वेजेस मे बी पेड इन करंट कॉइंस, हाँ जी, यस, इट कैन बी फिक्स्ड फॉर वीकली पेमेंट्स, यस। नाउ कब हमें वेजेस पे करनी चाहिए, तो बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, देन न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और इतने सारे न्यूमेरिकल्स नहीं आते। कभी आपको लगे कि अरे बारी बारी मैम न्यूमेरिकल्स बोल रही है, लेट्स से लेबर कोड्स में, ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 से ज़्यादा नहीं न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें आपको लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, ठीक है। वो तो आप जब चैप्टर करोगे आपको तब सब समझ जाएगा, तो इतना टफ नहीं होता है वो। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, यू कैन इजीली डू दैट इज नॉट एज टफ। नाउ दीज PYQs विल टेल यू, लाइक फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग एंड SSC एस्पिरेंट्स को थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि जब वो कोई भी चीज़ करते हैं, देयर आर डायरेक्ट क्वेश्चंस टू इट, दे जस्ट हैव टू मार्क इट, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा एनालिटिकल काम आपको करना पड़ सकता है, कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, सो दैट इफ देयर इज एनी डाउट कि दैट EPFO के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, सो दैट दिस सॉल्व्स योर प्रॉब्लम, कि भाई देखो, हम ये चीज़ मेरी कैपेबिलिटी और कैपेसिटीज के अनुसार, ठीक है, क्या मैं इस तरीके से अपना चीज़ को, है ना, देयर इज एन आर्ट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो, ठीक है, कि हम उस चीज़ के हम यूज टू हैं, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के हम यूज टू हैं, ऑफलाइन के यूज टू हैं, क्योंकि पेन पेपर बेस्ड होता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक है। क्या स्टेटमेंट वाइज, क्या एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं इन द टाइम फ्रेम, ठीक है। ऑल ऑफ दैट यू हैव टू वे फॉर योर सेल्फ, क्योंकि हर एक जो स्टूडेंट एस्पिरेंट का होता है वो अलग होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया है ना, सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स, ठीक है। नाउ दीज आर द स्कीम्स। अब इसके अलावा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल सिक्योरिटी इज 2 चंक्स। वन इज द स्टैटिक
पोषण एंड वन अदर स्कीम्स. व्हाट आर द स्कीम्स व्हिच वाज आस्क्ड इन 2025? स्माइल स्कीम पे पूछा है, दैट इज अबाउट ट्रांसजेंडर्स एंड बेगर्स. मुद्रा योजना, अब देखो जो मुद्रा योजना है, इट कैन बी कंसिडर्ड यू एज योर करंट अफेयर ऑल्सो. इट कैन बी कंसिडर्ड एज योर पार्ट ऑफ current recent developments in your economy. क्यों? Because that is talking about loans, right? शिशु लोन्स, तरुण लोन्स, तो आप इसको इकोनॉमी का पार्ट भी समझ सकते हो. ठीक है, बट ठीक है, सिंस इट्स मतलब सोशल सिक्योरिटी में थोड़ा स्कीम्स आ जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है. देन पीएम पोषण है ना, फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन, एंड निष्ठा इज फॉर ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स. तो मेरे कहने का मतलब है, अब देखो 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं स्कीम्स के, इसका मतलब 4, ठीक है, इंटू 2.5. तो आप ऑब्वियसली 10 मार्क्स ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो. अगर गवर्नमेंट स्कीम्स आ रहे हैं तो 10 मार्क्स इज अ ह्यूज नंबर. ठीक है, देन ठीक है, ये तो आप देखो पहले ही हो गया है. हाँ, देयर आर वेरियस स्कीम्स दैट आर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम्स लाइक एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स. ठीक है, स्प्री तो चलो आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसको रहने दो. देन देयर आर रीसेंट ईपीएफओ रिफॉर्म्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल एक देखो, अब जो भी ईपीएफओ से रिलेटेड चीजें आती हैं, है ना, ये तो सारी एक्ट होगी, सॉरी कॉर्ड्स होगी, तो ईपीएफओ रिलेटेड चीजें आती है. फॉर एग्जांपल देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में दे हैव रिलीज डॉक्यूमेंट जिसमें ये बताया गया था कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया is covered under social security. That was the latest aspect of what labor and social security. That means थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हमें करंट एस्पेक्ट भी करना पड़ेगा. ठीक है, थोड़ा सा हमें करंट एस्पेक्ट भी करना पड़ेगा. दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, ईपीएफओ, लेबर रिफॉर्म्स. ठीक है, और आप ये बोल सकते हैं लेबर रिलेटेड रिपोर्ट्स. ठीक है, ये आया हुआ था. चलिए, ये तो सेम ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. तो ये देखो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, निष्ठा, 2 लाइन का, निष्ठा और पीएम पोषण, इन्होंने एक ही लाइन में पूछा था कि ये किस चीज के लिए है. देन दे हैव आस्क्ड अबाउट स्माइल स्कीम, तो आंसर यहाँ पे बोथ है, क्योंकि दैट इज फॉर ट्रांसजेंडर्स आल्सो एंड दैट फॉर बेगिंग आल्सो. अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है, पते की बात क्या है. नाउ वी आर डन विद द सिलेबस ऑफ दिस सोशल सिक्योरिटी एंड डिस्कशन. पते की बात ये है कि देखो, banking aspirants know that there are approximately 100 and 120 schemes and 150 schemes which they do. हमें जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता क्यों ऐसे बता रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट स्कीम्स करनी है. भाई आप बताओ कैसी गवर्नमेंट स्कीम्स करनी है. देखो दोस्त, आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं करनी है. देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स. द गवर्नमेंट स्कीम्स दैट आर रिलेटेड टू सर्टेन, ठीक है, सर्टेन एस्पेक्ट्स दैट डील्स विद सोशल सिक्योरिटी. Right? Social security. What does that mean now? Okay. Social security means like any kind of scheme that is impacting our what? The security. What does it include? It can be financial security. ठीक है, मैं bifurcate कर देती हूँ इस चीज को. It can be financial security. It can be retirement security. It can be pension security. Okay. It can be related to any kind of insurance. ठीक है जी, ओके मैम, कैन यू गिव सर्टेन एग्जांपल्स? यस, आई कैन डेफिनेटली गिव यू द सर्टेन एग्जांपल्स. ठीक है, ओके. फॉर एग्जाम्पल जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट, और सुरक्षा बीमा योजना, इट टॉक्स अबाउट व्हाट, बीमा, which means insurance. So this kind is of insuring you, it is a kind of security that is provided to you. ठीक है. Similarly, for example, for pension we have what, NPS. ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, बैंक एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा डिटेल में करते हैं इस चीज को. फॉर एग्जाम्पल अब देखो, आप पेंशन में भी देखो, पेंशन में भी इफ यू सी फार्मर्स वी हैव किसान मानधन योजना. ठीक है, और इफ यू सी लेबर, स्पेसिफिकली लेबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? लेबर, ईपीएफओ, सोशल सिक्योरिटी, ईपीएफओ, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, दैट इज श्रम योगी मानधन योजना. ठीक है, ठीक है. नाउ ये क्या लिखा था मैंने, हाँ, रिटायरमेंट सिक्योरिटी, जो भी हमने ग्रेचुटी वगैरह ये सब डील किया था. अब तो इसका मतलब नंबर 1, anything that is talking about schemes that deals with aspect of social security, that is important. ठीक है. secondly there are certain, ठीक है, communities, for example women. अब आप खुद सोचो, जो हमारा एग्जाम्पल आया, पीएम क्वेश्चन आया था, that dealt with women and children, उन्होंने उस पर पूछा है. देन कम्युनिटीज लाइक ट्रांसजेंडर्स पूछा है कि नहीं, स्माइल पूछा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रांसजेंडर्स. देन सीनियर सिटीजन्स, 2023 में देयर वाज क्वेश्चन अबाउट अटल वयोवंदना योजना, दैट इज स्पेसिफिकली अ स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स. तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सीनियर सिटीजन्स. ओके,
देन एनीथिंग, एनी स्कीम दैट इज रिलेटेड टू लेबर, और आई कैन से दैट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के जो भी, जैसे मान लो कोई पोर्टल भी है, ठीक है, कोई पोर्टल भी है जैसे नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है या पीएम श्री श्रम योगी ये आपका श्रम पोर्टल है, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स, चाहे वो कौन सी भी मिनिस्ट्री के हो, प्लस कम्युनिटीज लाइक वुमेन, चिल्ड्रन, ट्रांसजेंडर्स, सीनियर सिटीजन्स एंड लेबर। तो ये आपकी स्कीम्स जो है कन्फाइन हो जाती है कि देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसान की स्कीम करूंगी तो मैं किसान से रिलेटेड जो पेंशन स्कीम है वो करूंगी, किसान मानधन योजना, और मे बी नॉर्मल बेसिक स्कीम जो बहुत ज्यादा न्यूज में आती है, फॉर एग्जाम्पल पीएम किसान 6,000 रुपीज इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कोई सीनियर सिटीजन की स्कीम कर रही हूँ, सो मे बी आई टॉक अबाउट सीनियर सिटीजन की कौन सी स्कीम, अभी अटल वयोवंदना योजना, ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स होती है, एंड आर देन, ठीक है, एक थीम और एक दो थीम और पकड़ लीजिए आप, वन इज हेल्थ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीएमआर हो गया 5 लाख रुपीज प्लस एजुकेशन, ठीक है, अभी जो इनिष्टा वाला आया था दैट वाज रिलेटेड टू एजुकेशन, तो ये दो थीम भी आप पकड़ लीजिए कि एजुकेशन एंड हेल्थ से रिलेटेड मोटा मोटा स्कीम्स दैट आर रिपीटेडली न्यूज, ठीक है, वो हमें करनी है। तो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं करनी है। आई होप आई एम वेरी क्लियर नाउ। आई नो द वीडियो कैन बी लॉन्ग बट आई हैव टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो से आपको पता चला होगा हमारे जो लेबर लॉस आईआर सोशल सिक्योरिटी से 15 क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं बाद में भी बताऊंगी। चलो, नाउ दिस इज अकाउंटेंसी कोर कांसेप्ट्स, ठीक है, दिस इज अकाउंटेंसी कोर कांसेप्ट्स, व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट। सी, एक तो मेरे को 2-4 चीजें से बतानी है। मोस्टली पीपल का जो है कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता है, स्टैटिक पोर्शन ही यहाँ पे आता है, बेसिक्स ही पोर्शन यहाँ पे आता है, एंड जितना मैंने नोटिस करा है 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इसमें, सर्टेन न्यूमेरिकल्स आर आल्सो बीइंग आस्क्ड, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो वो न्यूमेरिकल्स भी इजीली कवर हो जाते हैं, ठीक है। और एक चीज और मैंने नोटिस की है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस बने हुए हैं दैट इज राइट, यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं दैट इज मोस्टली फ्रॉम द बेसिक्स, कोई एडवांस लेवल नहीं पूछ रहे हैं। जो बेसिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपको भी पता है कोई भी अगर आप बुक उठाते हो तो उसमें से 4 to 5 चैप्टर्स आपके बेसिक्स क्रिएट करते हैं एंड बाकी के चैप्टर्स आपके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं। सो आई हैव नोटिस दैट मोस्टली क्वेश्चंस आर फ्रॉम दीज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज अ कैपिटल रिसीप्ट, व्हाट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, व्हाट विल इंक्लूड इन डेप्रिसिएशन, देन व्हाट इज अ कंसेप्ट्स, मनी एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म, तो ये सारे आपके बेसिक्स में कवर होते हैं। अब आई नो ये थोड़ा सा एलियन टॉपिक लग सकता है बहुत सारे लोगों को, बट डोंट यू वरी, जैसे आप पढ़ाई करेंगे आपको वो चीज समझ में आने लगेगी। तो देखो ये वाले जो टॉपिक्स है सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे मैंने बताया कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। देन ये आपके बेसिक्स है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, एक्रूअल मैचिंग। आई एम अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से आई कैन गाइड विद दैट, ठीक है। देन डेप्रिसिएशन, क्या होता है डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंस, ये सारे पीवाईक्यूज पे जो टॉपिक्स हैं जो पीवाईक्यूज पे पहले इन्होंने पूछे हुए हैं, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या जो पूछे हुए हैं उन्होंने, दैट इज देयर, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस से भी हमेशा क्वेश्चन आ रहा है और बहुत इजी होता है, 2 पेज का चैप्टर होता है ट्रायल बैलेंस, वेरियस एरर्स होते हैं, ठीक है। इट्स लाइक आप समझ लीजिए आप महीने के एंड में जब आपने कोई भी खर्चा किया है तो आप उसको बैलेंस आउट करते हो, सिंपल, क्या रह गया है कि आपने कोई गलती कर दी है, इट इज दैट। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एरर, ठीक है। क्वेश्चंस दिखाऊंगी तो शायद थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। तो इस बार तो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन आया था 23 में। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मेनली आपको बस स्टैंडर्ड्स कौन सा है एंड उसका जो नाम है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और फीफो मेथड, अच्छा ये यहाँ पे 2023 में एक फीफो मेथड पे एक न्यूमेरिकल आया हुआ था, तो जिस तरीके से हमने लेबर किया था उसमें 2-3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए थे, इसी तरीके से आपके यहाँ पे मैक्स 2-3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगी मैं। फिर उसके बाद रिजर्व प्रोविजंस, इस पे आपका न्यूमेरिकल बेस भी आ सकता है जैसे ट्रायल बैलेंस पे, और यहाँ पे आपका नॉर्मल कि आपको जैसे मान लो दे दिया कि प्रॉफिट है, रिजर्व जरा कट करके आपका कितना नेट है, ऑल ऑफ दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट मींस रेक्टिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट बने हुए हैं, इफ आई वुड से, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन रहे हैं। देन ऑन द डेवलपिंग टॉपिक्स, अब एक बार इसके पीवाईक्यूज देख लीजिए।
सो अगर आप यहाँ पे चीज़ें नोटिस करोगे कि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं है ना, क्योंकि सी द एग्जामिनर ऑल्सो नोज कि एवरीवन जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं होता है। तो आप खुद सोचो ईपीएफओ रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इतने बेसिक नेचर के ही होंगे, बेसिक चीज़ें ही पूछेंगे आपसे, क्योंकि उनको पता है दे आर नॉट ग्रेजुएट्स इन कॉमर्स, दे हैव टू गो फॉर द प्लेइंग फील्ड, इसलिए वो हर चीज़ टफ नहीं देते हैं। हाँ, किसी का ऑब्वियसली कॉमर्स स्टूडेंट है तो उसको फायदा होगा, है ना, क्योंकि उसको ये ऑलरेडी आता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री का यहाँ पे आप क्या इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। तो ये देखो वन लाइनर चीजें यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। देन ओके फिर यहाँ पे उन्होंने पूछा है रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ट्रायल बैलेंस एंड दिस इज अबाउट द दिस बेसिक्स ओनली, ठीक है। कैश बुक पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ द रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। जैसे कि हम एंट्री करते हैं, डबल एंट्री करते हैं, उन्होंने बोला है कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। इट इज नॉट ऑन न्यूमेरिकल, कभी आप 2000 सोच के सोचो, इट्स नॉट ऑन न्यूमेरिकल, इट्स जस्ट द एंट्री कॉन्सेप्चुअल ओनली, ठीक है। तो अब देखो कैसे प्रिपेयर करना है। अभी मैं थोड़ा सा सिलेबस पे पीवाईक्यूज कर रही हूँ, कैसे करना है, यू जो हैव टू वेट फॉर 10 मोर मिनट्स। चलिए फिर उसके बाद आता है ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। देखो ऑडिटिंग अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग से देयर वर 10 क्वेश्चंस, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस से यहाँ पे आप 10-11 लगा सकते हो, यहाँ 4 to 5 है, तो टोटल आपके 15 क्वेश्चंस जो है दैट आर देयर। नाउ ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस आर वेरी क्या है, बहुत ही शॉर्ट सब्जेक्ट है, बहुत शॉर्ट सब्जेक्ट है। अगर आप नोट्स में बनाओगे तो 4-5 पेज में आपकी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी, दो लेक्चर्स में आपकी यहाँ पे चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो देखो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, देन वाउचिंग, ठीक है, एक नॉर्मल क्वेश्चन आया हुआ था, ऑडिट स्ट्रैटेजीज एंड फ्रॉड रिपोर्टिंग, किसको रिपोर्ट क्या क्या होगा, इंश्योरेंस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन पूछा हुआ था एक बार। Then what is contract of indemnity and what are the principles that are basically taken in account जब इंश्योरेंस वगैरह होता है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, when you will take the context तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। चलो लेट्स डिस्कस विद द इंग्लिश। अब देखो इंग्लिश के देयर आर 20 क्वेश्चंस, ठीक है, हर एक के साथ मैं बताई जा रही हूँ कि इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। 20 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश इज समथिंग विच इज लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा जो है वो आपकी इंग्लिश स्कोरिंग होती है। 20 क्वेश्चंस इज 20.5, ठीक है। अब देखो इसमें अब अगर आप सोच रहे हो कि मेरा इंग्लिश अच्छा है मैं वो कर डालूंगा, देखो वोकैबुलरी आती है, 5-6 क्वेश्चंस वोकैब के आते हैं, एंड अगर आप क्वेश्चन उठा के देखोगे 23-25 के अच्छी खासी वोकैब आती है विदाउट नॉट प्रिपेयरिंग, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। हाउएवर मुझे पता है वोकैब का बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया होता है कि कैसे क्या करना है। द बेस्ट पार्ट इज व्हेन दे आर गिविंग वोकैब, ठीक है, द बेस्ट पार्ट इज व्हेन दे आर गिविंग वोकैब। तो वो ऐसे बैंक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि बताइए इसका एंटोनिम क्या है, बताइए इसका सिनोनिम क्या है, ऐसे नहीं पूछते हैं। दे गिव यू अ सेंटेंस, दे हाईलाइट अ वर्ड एंड देन दे विल टेल यू, सो यू कैन ईजिली, ठीक है, फिट दैट वर्ड इन दैट सेंटेंस। आई विल शो यू सर्टेन एग्जांपल्स। तो सब तो देखो एक जो नॉर्मल स्टैटिक चीज़ें हो रही हैं वो है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। 5 मार्क्स 5 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम पैराजम्बल्स नहीं आए थे, ठीक है, लेकिन 2023 में देयर वर पैराजम्बल्स इन बोथ AO एग्जामिनेशन ऑल्सो, APFC एग्जामिनेशन ऑल्सो पैराजम्बल्स के थे। देन क्लॉज टेस्ट, idioms and usage in context. It means they are not asking you directly the meaning of the idioms. There will be a sentence. In sentence there will be a use of that idioms. So you have to tell the meaning of it. Correct? Then normal, passive and modal vocab. अभी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे. Phrase to word substitution, which means let's say phrase and what will be the word that fits that phrase. Prepositions and phrasal verbs and error spotting. तो बेसिक्स ये चीज़ें आएंगी। अब आपको दिखा देते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये 2025 का पेपर है जिसमें इन्होंने बताया है कि जैसे मान लो द इवनिंग लुक्ड डैश अगेंस्ट द स्ट्रेस्ड आउट स्काई, तो अब आपको फिट करना है ये चीज। समर्स डैश बी रियली हॉट एट टाइम्स, सो मेक श्योर यू स्टे हाइड्रेटेड। तो कैन, कुड, माइट, मे, ऑल ऑफ दैट, दिस इज द काइंड ऑफ वोकैब दे आस्किंग इन द फॉर्म ऑफ लाइक इन द सेंटेंस ओनली। तो सेंटेंस दिया जा रहा है आपको, वोकैब दी जा रही है, यू हैव टू टेल, और ऊपर देख लेना जरूर कि ये मीनिंग की बात कर रहे हैं, टोनिम्स की या सिनोनिम्स की, इस तरीके से। देन आई हैव ब्रॉट, आई थिंक मैंने 2020 जैसे इसमें पैराजम्बल्स नहीं आए थे ना, बट पैराजम्बल्स आए थे 2023 में, तो मैंने वो भी ऐड किया है
ठीक है, एक पैराजंबल है यहाँ पे सेंटेंसेस के, एक है डायरेक्ट, आप देख सकते हो नॉर्मल ये आपको दिया हुआ है, तो आपको देखना है रमेश लाइक हिज फ्रेंड्स म्यूजिक प्लेयर इज ऑन, ये तो चलो ठीक है। अच्छा एरर स्पॉटिंग है ये तो, ठीक है एरर स्पॉटिंग है ये, और ये आपके क्या है पैराजंबल्स है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं। चलिए ये क्या हो जाता है नाउ, कमिंग टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, कमिंग टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, व्हाट आर द चैप्टर्स जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, ठीक है। देखो आपको भी पता है सिलेबस क्या होता है, वही आपका अरिथमेटिक, परसेंटेजेस, लॉसेस, डिस्काउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डीआई, फिर नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन इस बार पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, इस बार नंबर सिस्टम पे बहुत फोकस किया हुआ था, एचसीएफ एलसीएम पे बहुत फोकस किया हुआ था, डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन आया हुआ था। इट मीन्स जिस तरीके से यूपीएससी सीसेट का आता है पेपर, जिसमें से नंबर सिस्टम उनके प्रायोरिटी पे रहता है, ठीक है, उस तरीके से इन्होंने ही वही आपके प्रायोरिटी टॉपिक्स आए हुए हैं। बट जो यूपीएससी सीसेट होता है, उसमें जो सीसेट होता है दैट इज क्वाइट टफर, ठीक है, इफ यू कंपेयर विद द ईपीएफओ। यहाँ पे आपको इस तरीके से नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस मिलेंगे दैट आर क्वाइट सॉल्वेबल इफ यू डू दैट, ठीक है, रिलीजियसली, इफ यू डू दैट रिलीजियसली आप वो क्वेश्चंस कर पाओगे। इट इज नॉट लाइक माइंड बॉगलिंग विच इज देयर इन द सीसेट, ठीक है। देन टाइम वर्क पे क्वेश्चन आया हुआ था इस बार, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ पे ट्रेन का एक क्वेश्चन आया हुआ था। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन्वेस्टमेंट्स का ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था रिगार्डिंग द कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एंड हाउ यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट। परसेंटेजेस तो देखो हर चीज में यूज होता है, एवरेज पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। नाउ दैट्स आल्सो इंक्लूड स्टैटिस्टिक्स, एक क्वेश्चन यहाँ पे मीन मीडियम मोड का भी आया हुआ था, ठीक है। देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन डाइस, ठीक है। देन 2023 में, ठीक है, इस बार तो आई थिंक मुझे याद नहीं है एक या दो क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, या एक आया होगा। 2023 में मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, टैंक्स का क्वेश्चन था वैसे 2025 में, ठीक है, और दैट वाज नॉट रिलेटेड टू ज्योमेट्री, दैट वाज रिलेटेड टू जो हम वो पाइप एंड ऑल जो उसको सॉल्व करते हैं अरिथमेटिक वाला। देन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस इज इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इक्वेशंस, ठीक है। तो लास्ट टाइम, ठीक है, अब इस बार का बोल नहीं सकते, लास्ट टाइम देयर वर सर्टेन टॉपिक्स लाइक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस दैट यूजेस, ठीक है, दैट यूजेस व्हाट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ऐसे करके आप परपेंडिकुलर है या वो है आप फाइंड करो उस तरीके से, ठीक है। देन देयर वाज 2 ज्योमेट्री क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है, सर्कल्स पे क्वेश्चन आया हुआ था। देन देयर वाज क्वेश्चन अबाउट मेंसुरेशन आल्सो, ठीक है। बट दिस टाइम क्या हुआ, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के इतने क्वेश्चंस नहीं आए थे, देयर वर क्वेश्चंस मोर, और लास्ट टाइम डीआई भी आया हुआ था, तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो। बट आई वुड बिलीव दैट व्हाट वुड बी द स्टैटिक इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन वुड बी, ठीक है, व्हाट वुड बी द स्टैटिक इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन would be definitely and definitely number system, divisibility, HCF, LCM, ठीक है, and certain arithmetic based questions जिसमें आपका mostly ratio, percentages, average, time and work, ये आपके क्या है stable topics है, ठीक है, stable topics है including dice। एक question यहाँ पे कैलेंडर का भी आया हुआ था, that can you consider for the reasoning aspect also, ठीक है। now परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है, आ सकता है, लेकिन जो मेंसुरेशन है और जो ज्योमेट्री है दे आर वेरी वास्ट टॉपिक्स, ठीक है, क्या पता पूछे या ना पूछे, तो आपको वहाँ पे प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि मान लो 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वांट के, ठीक है, 9 to 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं क्वांट प्लस रीजनिंग के, ठीक है, प्लस स्टैट, एक स्टैट का क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसमें 9 to 10 क्वेश्चंस और ऑफ क्वांट। तो यू हैव टू सी, यू हैव टू बैलेंस इट आउट कि भाई देखो ये मोस्ट स्कोरिंग है, कम टाइम पे मैं ज्यादा क्वेश्चंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मुझे इनको पहले निपटाना है। इफ टाइम परमिट्स देन आई विल डू व्हाट मेंसुरेशन, देन आई विल डू ज्योमेट्री, और एटलीस्ट आई विल क्रैम द फॉर्मूलाज इन केस, ठीक है। तो चलिए these are the type of questions आप देख सकते हैं, I will provide you entire PPT PDF, there is a number questions, ठीक है, this is a ratio question, ठीक है, ratios plus investments वगैरह, ठीक है। now ये आपका time and work है, फिर उसके बाद दिस इज द कैलेंडर क्वेश्चन। अब आप देखो दिस इज नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड फॉर द यूपीएससी एंड दिस इज नॉट एज इजी एज द बैंकिंग वाला जो होता है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्चुअल और इमेजिनेशन यहाँ पे यूज हो रही है, और ये नॉर्मली आप जो कैलकुलेट करते हो प्राइस एंड मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो ऑल ऑफ दैट, ठीक है। चलिए नाउ रीजनिंग से जो क्वेश्चंस आते हैं ये वाले आप देख सकते हो, सिलॉग्स, ठीक है, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग, आई थिंक रीजनिंग सबका नॉर्मल होता है, सही होता है, तो कहीं ना कहीं से रीजनिंग तो क्या होता है मैनेज हो जाता है, ठीक है। अब आज कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे, ठीक है, देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 2023 एंड 2025 का कंप्यूटर। इन 2023 देयर वर मेनी क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर, देयर वर मेनी क्वेश्चंस, आई थिंक 10 क्वेश्चंस कुछ थे, ये 10-12 क्वेश्चंस थे। इस बार थोड़े कम आए हैं, 5 to 7, आई थिंक 5 तो नहीं आए हैं, लेट्स से 7 और आई थिंक 8 आए हैं, थोड़े कम आए हैं। 2023 में जो एग्जाम में पूछा गया था दैट वाज कोर कंप्यूटर, ठीक है, डेसिमल सिस्टम क्या होता है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी आपको, बहुत ज्यादा कोर पूछा हुआ था। बट इस बार मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, इट वाज आल्सो लाइक मोर ऑफ द करंट एस्पेक्ट आल्सो,
ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है हमें बेसिक्स नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना है वो बताएंगे अभी। फटाफट से इसका ये देख लेते हैं, मेमोरी। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, लाइक SD कार्ड, SL ये वो। उसके बाद चैट जीपीटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, GPU CPU ये आप डिफेंस में भी डाल सकते हो, करंट अफेयर्स में भी डाल सकते हो। दैट वाज टॉकिंग अबाउट एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम एंड GPS। अब आप एक बार क्वेश्चन देखें तब आपको समझाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिस वाज द क्वेश्चन। अब आप इसको अगर देखेंगे, दिस इज व्हाट चैट जीपीटी, दिस इज करंट एस्पेक्ट। ठीक है, दिस इज करंट एस्पेक्ट, वेयर एज दिस इज टॉकिंग अबाउट लाइक फॉर ट्रेनिंग एंड डिप्लॉइंग मॉडल्स इन AI, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड। तो समवेयर यहाँ पे करंट एस्पेक्ट भी ऐड कर दिया और आपका स्टैटिक एस्पेक्ट भी ऐड कर दिया, एंड दिस इज प्योर आपका करंट एस्पेक्ट। यहाँ पे इन्होंने इसकी क्या पूछ लिया, फुल फॉर्म ही पूछ लिया, करेक्टली स्टैंड्स फॉर SSL इंक्रिप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से देयर वाज आई थिंक लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चंस भी थे। अब देखो कैसे करेंगे इसको। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे देयर विल बी लॉट ऑफ मेनी यूट्यूब वीडियोस जो बहुत बेसिक से विद MCQs प्रैक्टिस आपको वो करवाते हैं, वहां से आपका कंप्यूटर जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, now general science that includes chemistry, biology, physics. Also there was a huge difference between physics के जो क्वेश्चंस थे इस बार और लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस पूछे रहे थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है आते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। ठीक है, फिजिक्स पे लास्ट टाइम उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए थे अबाउट सम काइंड ऑफ वेलोसिटी, जो सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है जो कोर साइंस बैकग्राउंड का है। अब आप उस एक न्यूमेरिकल के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। आई वुड आस्क यू टू डू द स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, ये पर्माफ्रोस्ट होंगे, ये तो देखो एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, पंचमी ये भी आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, 9-10 क्वेश्चन जो आपके साइंस के आ रहे हैं। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन आए थे शायद, एक बार मैं बता दूंगी आपको। प्रीवियस PDF में है शायद 7-8 क्वेश्चन आए हैं तीनों को मिला के, जिसमें से करंट एस्पेक्ट इज ऑल्सो देयर, राइट। देन आपको उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से हो रहे हैं। केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर बायोलॉजी एंड फिजिक्स, यानी कि अगर आप केमिस्ट्री को भी प्रायोरिटी दें तो आपका 50% साइंस यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है, 50% जनरल साइंस। तो फॉर एग्जाम्पल दे आस्क्ड अबाउट सॉप्स एंड ऑल। इस बार उन्होंने कुछ मैग्नीशियम एंड सल्फेट्स एंड हार्ड वाटर का कुछ पूछा हुआ था। ठीक है, टार्टरिक एसिड नॉर्मल, ये देखो हार्ड वाटर का पूछा हुआ है। ठीक है, देन ह्यूमन, ये लास्ट टाइम पूछा हुआ था ह्यूमन एनाटॉमी दैट इज, देन और इस बार कुछ DNA का और कुछ टिश्यू का कुछ पूछा हुआ था विच इज बेसिक बायोलॉजी। ठीक है, तो अब देखो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है उनको तो बहुत डर लगने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, बट आपको डरना नहीं है, प्रॉपरली लेक्चर्स देखने हैं। फॉर दैट रीजन आपको केमिस्ट्री प्रायोरिटी भी रखनी है, ट्रस्ट मी। व्हाई? वंस इट इज इजी स्कोरिंग ऑल्सो, कि अगर आपने पढ़ लिया तो आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, फिजिक्स का कोई भरोसा नहीं है कि क्या पता कोई एप्लीकेशन बेस कर ले तो आप पता नहीं आंसर कर पाओगे या नहीं। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप वो चीज कर लोगे। चलिए, अब आप ये देख सकते हैं, सपोज दे हैव आस्क्ड अबाउट एयरबोर्न, हमारा जो ये वार्निंग कंट्रोल सिस्टम होता है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स ऑल्सो। ठीक है, बट क्या हुआ था, ये फिजिक्स के क्वेश्चंस के साथ था। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे GPS है, करंट पूछ लिया। ठीक है, देन दे हैव आस्क्ड अबाउट दीज वेरियस रेज, कि ड्रोन टाइमिंग एंड ऑल ऑफ दैट में रेज क्या है, ये भी थोड़ा करंट में डाल सकते हैं। अब आप ये देखिए फैटी एसिड्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, या फोटोकेमिकल स्मोक, ये तो एनवायरमेंट का भी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं अगर आपने फोटोकेमिकल स्मोक आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। ठीक है, कि कैसे बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड से। ठीक है, तो अगर यू विल सी, हाँ, दिस इज कोर। देखो एक तो ये आपका हो गया करंट। ठीक है, ये भी मैं इसको बोलूंगी अगर किसने ज्योग्राफी पढ़ी है, नहीं तो ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक आप साइंस में भी पढ़ते हो। ठीक है, दिस इज कोर केमिस्ट्री, विच ऑन द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बोलिक एसिड, द सेकंड नेम ऑफ द कार्बोलिक एसिड उन्होंने पूछा है। ठीक है, देन प्राइमरी कमर्शियल यूज ऑफ अमाइंस, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, कि अमाइंस का किस चीज में यूज होता है। ठीक है, then if you see this, which of the following is correct nature of substance filling up the pleural cavity, the space between lungs and chest, यानी कि they talked about human anatomy। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 क्वेश्चंस करंट एस्पेक्ट से पूछे हैं, 3 क्वेश्चंस इन्होंने केमिस्ट्री के पूछे हैं, ये भी आप केमिस्ट्री में भी डाल सकते हो, एंड दिस इज ऑफ द बायोलॉजी। ठीक है, सो इस तरीके से, ठीक है, केमिस्ट्री को आपको और करंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस को, या फिर आपको ज्यादा ये आप साइंस एंड टेक में भी डाल सकते हो, आप टेक्नोलॉजी में, ड्रोन वाला है ना, एयरबोर्न सिस्टम वाला, तो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, नाउ दिस इज अबाउट द पॉलिटी। देखो पॉलिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार जो आए हुए थे वो जुडिशरी के आए हुए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस दैट केम अप, ठीक है, दैट वाज ऑफ फॉर द जुडिशरी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपको पता है द बेसिक्स जो आपके आते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, DPSPs,
और हमारे जो स्टार्टिंग के जो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, दैट डील्स फ्रॉम द आर्टिकल 1 टू योर DPSPs, दे आर द एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लस देन प्रेसिडेंट एंड देन दिस थिंग जुडिशरी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। यहाँ पे आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, यू हैव टू डू द बेसिक बुक्स जो यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स करते हैं, लक्ष्मीकांत, या फिर आपको नोट्स प्रोवाइड, आप कोई भी कोचिंग के जो भी आप नोट्स है, ठीक है, इस तरीके से आप, ठीक है, और इफ यू टेक आवर कोर्स तो आप यहाँ पे कोचिंग नोट्स पे रिलाई कर सकते हो, राइट, इन विच, ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द प्रोबेबल टॉपिक्स जो रिपीट किए हुए हैं, दैट इज FR DPSPs, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी कमीशन कौन कौन से हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इन्होंने पूछा है, इनफैक्ट दे हैव आस्क्ड अबाउट द विधान एप्लीकेशन ऑल्सो दिस टाइम, एंड एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था उन्होंने, ईवीएम पे भी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। देन ये देखो, ये रहा ईवीएम वीवीपैट, एक कमिटी, जीएसटी काउंसिल, तो देखो आप जरूरी नहीं है आप पॉलिटी का पार्ट है, दैट कैन बी योर करंट अफेयर पार्ट आल्सो, कि जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, ठीक है, एंड लिस्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि कौन सी जो है कॉन्ग्रेंट लिस्ट में है, कौन सी स्टेट लिस्ट में, जो अपना 7 शेड्यूल होता है, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस आई विल शो यू। यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, यूसीसी पे क्वेश्चन है, एक्चुअली यूसीसी पे नहीं है, सॉरी, दिस इज फॉर द DPSPs, विच आर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द DPSPs, कि DPSPs पे कौन कौन से प्रोविजंस है, ठीक है। देन दे हैव आस्क्ड अबाउट द दिस आर लिस्ट, दैट हु कैन मेक लॉज ऑन विच लिस्ट, देन दिस इज अबाउट द CGI, ठीक है। तो अब देखो ये अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये थोड़ा यूपीएससी जैसा ही है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, थोड़ा सा डिटेल में है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पॉलिटी कैसी करनी है, पॉलिटी डिटेल में करनी है, और क्योंकि और अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आते हैं पॉलिटी के, ठीक है, 8 to 9 क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी के डायरेक्ट, ठीक है, 8 to 9 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के डायरेक्ट आपके यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, ठीक है, RTI पे आया हुआ है अगेन, अच्छा सेम ही है क्या ये, ठीक है। नाउ कम्स अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखो, जस्ट अ मिनट, सो इन मॉडर्न हिस्ट्री आप नोटिस करेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, द सर्टेन एस्पेक्ट जहां से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। एक तो पर्सनालिटी भी लास्ट टाइम 2023 में उन्होंने बहुत क्वेश्चंस पूछे थे, दे आस्क्ड अबाउट आई थिंक वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने क्या क्या किया है, बट इस बार पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिले हैं, डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चंस थे इन 2023। नाउ द शिफ्ट हैज बीन टुवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल। आपको भी पता है स्टार्टिंग फ्रॉम द कांग्रेस फ्रॉम 1885 टू जो भी आपका नॉन कॉपरेशन या क्विट इंडिया मूवमेंट है, वो वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन चार्टर से क्वेश्चन पूछे थे इन 2023, देयर वर मोर क्वेश्चंस अबाउट द चार्टर्स, ठीक है, ये सारा 2023 में थे, इसका मतलब वो अभी भी चार्टर्स का रेलेवेंस यहाँ पे है, ठीक है। देखो जो पॉलिटी है और जो हिस्ट्री है उसका जो पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दैट इज मोस्टली अबाउट यूपीएससी CSE ओनली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मदन मालवीय कांग्रेस सेशन के कौन प्रेसिडेंट्स रहे थे, ठीक है, रानी चिन्नम्मा पर्सनालिटी बेस्ड 23 में था, ठीक है, होम रूल मूवमेंट्स तिलक वर्सेस एनी बेसेंट, मतलब दोनों के उसमें क्या था, ठीक है, कॉर्नवालिस सिस्टम दैट मींस कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन अब आप कुछ सोचिए कि जो ट्राइबल मूवमेंट्स है, पीजेंट मूवमेंट्स है, ठीक है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स है, लेबर के जो मूवमेंट्स है, इट इज रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड टू EPFO एंड सोशल सिक्योरिटी वाले, तो ये सारे जैसे ये 2023 में पूछा था, ठीक है, तो ये सारी चीजें मूवमेंट्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, स्पेसिफिकली आपको वो पढ़ना पड़ेगा, क्या वो आप IR में भी पढ़ोगे, दैट इज प्री इंडिपेंडेंस ट्रेड यूनियंस, ठीक है। अब मान लो मुझे अहमदाबाद स्ट्राइक के बारे में ही नहीं पता है, मैं EPFO का एग्जाम देने जा रही हूँ, आपको पता है दिस इंक्लूड्स द फ्रीडम स्ट्रगल ऑल्सो, गांधी स्ट्रगल, गांधी वाला जो मूवमेंट है वो भी, और इट इज पार्ट ऑफ व्हाट, लेबर स्ट्राइक। तो ये आपका ये इस तरीके से आपको कोर, ठीक है, कोर जो आपके मूवमेंट्स है वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें देखनी पड़ेगी, एंड जो फ्रीडम रिलेटेड है, आपको भी पता है कि ये बहुत सारा है मॉडर्न हिस्ट्री, इसलिए हम बताएंगे कि कितना किस पे कितना ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, so this was the they have asked about the chronology of these rebellions, then there was talked about this non cooperation movement, एक तो मुझे पेन चेंज करना पड़ रहा है बारी बारी, screen is white and black, this is about the home rule movements and they about the feudal system, this was a tough question to solve, ठीक है। चलिए, तो आप पॉज करके देख लेना एक बार, फिर आता है आपका आर्ट एंड कल्चर। मोस्टली देखो इस बार इन्होंने नाट्य शास्त्र से क्वेश्चन पूछ लिया, लास्ट टाइम इट वाज ऑन क्या बोलते हैं
कौटिल्यस अर्थशास्त्र, सो उसके क्या पूछे हुए थे, फीचर्स पूछे हुए थे, कोई तो एक दो चीज दी हुई थी एंड दे हैड टू मार्क इट, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, रॉक आर्ट आर्किटेक्चर एंड दैट केव्स आर्ट आर्किटेक्चर, रॉक आर्किटेक्चर एंड योर टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके वहां से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बुद्धिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में देखो यहाँ पे कोर भी आ सकता है, जैसे इस बार उन्होंने कोर पूछा हुआ था, ठीक है। कोर चीजें, कोर मेरा कहने का मतलब है स्टैटिक एंड नॉट द आर्किटेक्चर, बट लास्ट टाइम उन्होंने क्या पूछा हुआ था, आर्किटेक्चर, ठीक है, स्तूपा का, ठीक है, जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर का पूछा हुआ था, हर्मिका, ठीक है, वही टेम्पल नहीं, सॉरी, हर्मिका तो स्तूपास में ही होती है। फिर उसके बाद आता है टेम्पल आर्किटेक्चर, दिस टाइम दे आस्क्ड अबाउट कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा एंड ब्लैक पगोड़ा, क्या बोलते हैं। तो आप नोटिस करना, ये भी टेम्पल है, ये भी टेम्पल है, ये आपके आपके रोक हो गए, ठीक है, इसमें भी फिर टेम्पल घुस आ रहे हैं बुद्धिज्म के क्वेश्चन में भी, ठीक है। सो कैन आई से दैट इफ आई हैव टू डू आर्ट एंड कल्चर बट आई हैव टू डू लिमिटेड आर्ट एंड कल्चर, तो आई हैव टू फोकस फर्स्ट ऑन व्हाट, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, केव एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। मे भी हो सकता है वहां पे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं 2 क्वेश्चन कर पाऊँ, दैट इज अ स्मार्ट स्टडी, ठीक है। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, मुझे पता है कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, बट देन आई हैव टू डिस्कस द डिटेल्ड सिलेबस एंड PYQs एंड देन वी विल सी कि किसमें से हमें क्या क्या कैसे करना है, किस पे क्या टाइम लगाना है, बस अभी होने ही वाला है, ठीक है। या इसलिए मैं थोड़ा सा आपको PYQs भी ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ, सो दैट यू कैन जस्ट पोज एंड सी इट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रोनोलॉजी, सो देव आस्क्ड अबाउट द क्रोनोलॉजी, राइट, कि कौन सा टेम्पल कब बना था। हाउएवर ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, इवन इफ यू हैव रेड, अब देखो भीमबेटका आपको पता है ओल्डेस्ट है, तो आपको इसको इस तरीके से यू हैव टू व्हाट सी, क्या यू हैव टू सी, ठीक है, कि भाई देखो इसमें मतलब यू कैन, हम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, हाँ, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज ब्लैक पगोड़ा, ठीक है, ब्लैक पगोड़ा किसको बोलते हैं, ठीक है, ये आपको भी पता है, सन टेम्पल कोणार्क। और फिर उसके बाद आ जाइए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से रिलेटेड देयर वाज अ स्टैटिक क्वेश्चन, मतलब स्टैटिक मतलब नॉट ऑन द आर्किटेक्चर, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि हमें स्टैटिक पोर्शन भी करना पड़ेगा, फीमेल डाइटीज एंड प्रजनन परमिता, और वो क्या होता है। फिर उसके बाद डिस्कवर द रॉक, किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। देन उसके बाद दे हैव आस्क्ड अबाउट व्हाट, दिस नाट्यशास्त्र, यानी बुक्स पे क्वेश्चन आया हुआ था, लास्ट टाइम अर्थशास्त्र और पोर्ट्रेट पे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। चलिए, अब है आपका ये रिपीट क्यों हो जाता है, ठीक है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, जो 2 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, किस पे, अवार्ड्स पे, ठीक है। देन देयर वर क्वेश्चन अबाउट स्पोर्ट्स, ठीक है। अब देखो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स नहीं करते हैं, अवार्ड्स नहीं करते हैं, नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, दैट इज लाइक 1 in 3-4 years, ठीक है। देन पीएम गति शक्ति लास्ट टाइम पूछा होगा, ठीक है। इकोनॉमी एंड फाइनेंस, देखो इकोनॉमी का मैंने अलग से कोई भी आपको आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्यों, अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। इन्फ्लेशन, मुद्रा योजना, RTGS, NEFT एंड ऑल ऑफ दैट। डिफेंस, दिस यू कैन कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ योर व्हाट, कोर साइंस एंड टेक ऑल्सो, एयरबोर्न सिस्टम, ड्रोन एंड GPS, यहाँ पे भी वहाँ पे भी पढ़ा था हमने, स्पेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स, आप इसको यू कैन टेक अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी ऑल्सो, यू कैन टेक पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स ऑल्सो। स्माइल, है ना, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, ये क्वेश्चन था। देन पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज पे था लास्ट ईयर 2023 में भी, एंड दिस, यानी कि दैट टॉक्ड अबाउट व्हाट, मेडल्स इन स्पोर्ट्स, ठीक है। चलिए, सो ये आपका क्या है, PYQ से हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आप देख सकते हैं, फैल्कन एंड स्पेस एक्स एंड फीफा पे क्वेश्चन पूछा हुआ इन्होंने, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द कोर थिंक, कि किस तरीके से क्या क्या करना है, ठीक है। आई नो बहुत डिटेल हो गया है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, यानी कि कोर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे सबसे पहले करने हैं, क्योंकि अगर मैंने ये कोर सब्जेक्ट्स कर लिए तो मैंने आधा पेपर निपटा लिया। व्हाई, बिकॉज मोर देन 60%, more than 50%, और आई वुड से 65 to 70 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन रहे हैं। 120 क्वेश्चंस में से अगर आप 70 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अगर आप फर्स्ट मंथ कर लोगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ओके मैंने ये चीज कर ली है, ठीक है। अब देखो आप, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। सो व्हाट आर दो सब्जेक्ट्स, व्हाट आर दो सब्जेक्ट्स, वन इज योर लेबर लॉस, बारी बारी लॉस निकलता है, ठीक है, लेबर कोड्स, ठीक है, प्लस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब दीज आर दो सब्जेक्ट्स विच आर लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल ऑफ देम, चाहे आप बैंकिंग के हो, चाहे आप UPSC के हो, चाहे आप SSC हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, नंबर 1, नंबर 2, ओके। देन द क्वांट,
ठीक है, देन द रीजनिंग एंड देन द इंग्लिश। मुझे अलग अलग लिखने चाहिए, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब यहाँ से ही 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ आई ऐड, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स, लेट्स से 5 क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम्स के आ रहे हैं, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स आपका यहाँ हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, मैम ये कैसे करना है। क्वांट रीजनिंग कहीं से भी आप कर सकते हो, यू ऑल्सो नो दैट देयर आर नंबर ऑफ वीडियोस, नंबर ऑफ टॉपिक वाइज वीडियोस, और एनसीईआरटी बेस्ड चीजें करनी होती है। देन योर पीडीएफ्स आल्सो, प्रैक्टिस मॉक्स आल्सो, नो डाउट, ठीक है। सेम इज फॉर द इंग्लिश, बहुत सारी बुक्स आपको मिल सकती है, वर्ड मेडिसिन, पता नहीं क्या क्या, तो वहाँ से आई थिंक वो तो वो गैप की है, वहाँ से आप इंग्लिश, ठीक है, हेल चीजें होती हैं आपकी, हेल लॉट ऑफ वीडियोज आर देयर जो आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करवाते हैं। कमिंग टू द गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, इसके लिए तो डेफिनेटली वी हैव टू सी, ऐसा नहीं है, सी गवर्नमेंट स्कीम्स अगर आप डायरेक्टली करने जाओगे, देयर इज बहुत ज़्यादा क्लमजी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है, डिटेल गाइडलाइंस होती है। आई टेक गवर्नमेंट स्कीम्स, सो आई नो इट। एक एक जो स्कीम है दैट इज अबाउट 120 पेजेस, उसमें से फिर यू हैव टू चॉक व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एग्जाम रेलेवेंट, ठीक है। तो उसमें से देखो, इसका तो कोई इलाज नहीं है आपको, या तो आप किसी कोचिंग मटेरियल के नोट्स पे यू कैन रिलाई, और हम गवर्नमेंट स्कीम्स आपको सिलेक्टिव गवर्नमेंट स्कीम्स ही करवाएंगे, सिलेक्टिव लेट्स से 20 to 30 गवर्नमेंट स्कीम्स ही करवाएंगे, सो दैट आपका उसमें से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। नाउ इसका तो देखो कोई इलाज नहीं है, ट्रस्ट मी, क्योंकि आप बेरेट्स नहीं पढ़ सकते हो। आप बेरेट्स को इस्तेमाल अगर आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग जो है, एक बार आप खोल के देखना, इट विल जस्ट कहीं और ही पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके लिए तो देखो यू हैव टू रिलाई ऑन सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट, राइट, सम काइंड ऑफ लेक्चर्स, ठीक है, लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, कंटेंट भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट आस्किंग यू कि हमारा ही कोर्स लो या ऐसा वो, बट येस आई कैन गारंटी, क्योंकि ये टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ, दिस आर अनदर फैकल्टी विल बी टेकिंग द अकाउंटेंट ऑडिटेंसी, शी हैज एक्सपर्टीज इन दैट, ठीक है। तो आपका ये वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, राइट, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग फॉर दैट रीजन, राइट, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। अब देखो जो क्वांट है आपको प्रोबेबल टॉपिक्स बता दिए हैं, दैट इज नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, परसेंटेजेस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, एंड और बेसिक्स आपकी रीजनिंग होगी। इंग्लिश में आपको मैंने इंपॉर्टेंट, अब देखो क्यों ज़रूरी था आपको ये टॉपिक्स बताना, तो कि आपको समझ में आए कि मुझे सबसे पहले क्या करने हैं, कॉम्प्रिहेंशन करना है, मुझे सबसे पहले वोकैब करनी है, मुझे सबसे पहले पैराजम्बल्स करने हैं, एंड आपकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे एरर स्पॉटिंग होता है या सेंटेंस का वो है, तो मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है, 50-60 क्वेश्चन कर लूंगी तो मेरा ये चीज़ क्या हो जाएगा। अब दीज आर योर व्हाट प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स, मैंने स्लाइड में भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये आपके क्या है, प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स है, ठीक है, बहुत बार बता चुकी हूँ, 20 क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ से आपके आते हैं 15, फिर यहाँ से आपके आएंगे 15, अगेन यहाँ से आएंगे 15, एंड यहाँ पे आप 5 लगा सकते हो, तो यू कैन काउंट 15 3 45, राइट, 50 एंड ये तो 70 हो गया, एंड दैट इज ट्रू, ठीक है। इसमें कुछ भी वो नहीं है अकाउंटेंसी में। अगर मैं ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस जो मैंने आई थिंक यहाँ डाला होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 5 डाल देते हैं या 10 डाल देते हैं, क्योंकि ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस हम बाद में प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन काउंट, इट इज 65 क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको उसमें कम कर दिया है 30 40 50 60। तो अगर मान लो 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं और अगर आप फर्स्ट मंथ में 65 क्वेश्चंस निपटा लेते हो, यानी कि उसका सिलेबस आप निपटा लेते हो, देन इट इज गुड टू गो। अब देखो करोगे क्या, आप सुबह उठोगे ठीक है, आप सुबह उठोगे, सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना है, यू हैव टू टेक प्रिंट आउट्स। मैंने भी ऐसे किया था व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर द लास्ट ईयर। 2023 के 2 पेपर्स आपको मिलेंगे, बहुत बार बता चुकी हूँ, एक ईओ का होता है और एक एपीएफसी का। देन 2025 में कंबाइंड एग्जामिनेशन हुआ था ईओ एओ एपीएफसी का, तो आपको 2 पेपर्स 2023 के मिलेंगे, एक 2025 का मिलेगा। टेक द प्रिंट आउट्स, प्लीज टेक आउट। अब पीवाईक्यूज लोग कई बार कैसे देखते हैं, सारा पेपर देख लेंगे, दिल सी, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, सारा पेपर देख लेंगे, फिर पढ़ाई में डूब जाएंगे, पीवाईक्यूज यानी क्वेश्चन पेपर को भूल ही जाएंगे कि क्या पूछा है, कैसे पूछा है। ट्रस्ट मी, ऐसे नहीं होता है। व्हेन आई प्रिपेयर्ड इट, यू हैव टू सी ईच एंड एवरी डे, इवन लेट्स से आई एम प्रिपेयरिंग लेट्स से फॉर द कोड्स, सो मैं क्या करूंगी, आई विल जस्ट सी दैट चंक। और द बेस्ट पार्ट इज 2025 में तो ऐसा हुआ है कि 6-7 क्वेश्चंस उन्होंने कैसे पूछे हैं, एक साथ पूछे, तो मतलब आपको 2 जगह मिलेंगे लेबर कोड्स के, ज़्यादा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक 1 है, एक 15th है, फिर एक 18th है, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, लेट्स सी योर रीडिंग कोड्स, नाउ यू हैव टू सी बोथ द 2023 पेपर्स एंड 2025 ऑल्सो, कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हाउ दे आर आस्किंग, व्हाट आर द फैक्ट्स यू आर सपोज टू क्राइम। मैम ये तो चेंज हुआ है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। देखो चेंज हुआ है, बट द एसेंस इज
सेम। क्या चेंज हो सकता है? फैक्ट चेंज हो सकता है, ठीक है, बट एसेंस तो सेम है ना। अगर पेमेंट ऑफ वेजेस का वो रिडक्शंस पूछ रहे हैं, इट इज स्टिल द सेम, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं उसमें, ठीक है। तो आप उस कोर्स के क्या देखेंगे? क्वेश्चंस देखोगे, आप उस तरह को देखते रहोगे, फिर आप क्या करोगे? आप पढ़ाई करोगे, फिर आप सोचोगे अच्छा इस पे तो क्वेश्चन आया हुआ था, आई विल गो बैक टू माय पीवाईक्यूज अगेन। सो दिस शैल बी अ कंटीन्यूअस प्रोसेस फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सपोज इफ आई स्टार्टिंग विद द लेबर लॉज एंड लेबर कोड्स, आपका वो चीज, ठीक है, आपकी आप उस चीज का आप बारी बारी उस चीज को देखते रहोगे, ठीक है। प्लस आई एम स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग, राइट, तो मुझे बारी बारी उसकी क्या देखना है? पीवाईक्यूज। फिर मैंने सिलेबस कर लिया, उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, एम आई एबल टू सॉल्व दैट? क्या मुझसे वो हो रहा है? मैंने वो टॉपिक कर लिया, क्या मुझसे वो पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन हो रहा है? नहीं, ठीक है। सो हाउ योर डे मस्ट बी डिवाइडेड? योर डे मस्ट बी डिवाइडेड इन एनालाइजिंग योर पीवाईक्यूज। एनालाइजिंग का मतलब ये नहीं कि लेके बैठ जाओ और पूरा टेबल बना लो, वो आपके लिए हमने काम इजी कर दिया है। टेबल वेबल किसके क्वेश्चन कहाँ जाता हो रहा है, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पैटर्न है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, क्या ऑप्शन है, वो तो देखो आप ही करोगे, है ना। वो तो आप खुद करोगे ना, मेरी कैपेसिटी, मेरी कैपेबिलिटीज कितनी है, क्या मैं कर पा रही हूँ, क्या मैं कर पा रहा हूँ। पोस्ट दैट your half of your day, correct, half of your day shall be devoted to, half of your day shall be devoted to your codes, ठीक है। सबसे पहले कोड्स ही करेंगे क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है आप बाद में भी कर सकते हो, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, थ्योरी है, और थ्योरी के बिना भी आप लेबर कोड्स रट सकते हो क्योंकि आपको मीनिंग समझाया जाता है, ठीक है, इसमें मीनिंग समझाया जाता है। कमिंग टू द सोशल सिक्योरिटी, 2 पार्ट्स होते हैं, आधा आपका यहाँ हो जाएगा, एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। तो आपका फर्स्ट मंथ मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सितंबर, मैंने अगस्त छोड़ दिया है फॉर यू टू बेसिकली एनालाइज द स्ट्रैटेजी एंड वो सब देखो, प्लान बनाओ अच्छे से, ठीक है, रेडी हो जाओ। तो सितंबर में फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है? आपका हाफ ऑफ द टाइम शुड बी डिवोटेड टू ऑल दीज सब्जेक्ट्स, करेक्ट। नाउ, ठीक है, उसके बाद हाफ ऑफ द टाइम के बाद जो आपका हाफ बचता है उसमें से हाफ, ठीक है, उसमें से हाफ, ठीक है, लेट्स से नाउ इट्स अप टू यू। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे पूरा महीना उस चीज को करते हैं, कई बार क्या होता है मैं 15 दिन में इस चीज को निपटा दूंगी, फिर 15 दिन में बाकी क्या करूंगी? आई विल डू अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। Or sometimes people wants to take 2 subjects at one go. So what they do, half of the time will they give to labor codes and half the time they will give you, they will give to accountancy, ठीक है, they will give to accountancy. Then second, ठीक है, सेकेंड हाफ और यू कैन से द थर्ड पोर्शन, जो 3 पार्ट्स में आपने अपना दिन डिवाइड किया है, शैल बी टू योर आइदर क्वांट और इंग्लिश। व्हाई आई एम सेइंग आइदर? सी, आप हर दिन मैक्स टू मैक्स 3 सब्जेक्ट्स कर सकते हो, दैट इज अ प्रैक्टिकल रियलिटी। आई हैव बीन इनटू द प्रिपरेशन फॉर सो मेनी इयर्स फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस, बीट नबार्ड, सेबी एंड ईपीएफओ, देन सीएसआईआर, यूपीएससी। सो आई नो दैट यू कैन नॉट पिक मोर देन 3 सब्जेक्ट्स बिकॉज हम एक सब्जेक्ट में इतना इनग्रोस हो जाते हैं, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और जो सब्जेक्ट पहले उठाते हैं वो उतना टाइम ले लेता है कि आप 4 सब्जेक्ट में पहुंच ही नहीं पाते। सो लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, नो शुगर कोटिंग, ठीक है। आप अपना दिन का पहला चरम बोलते हैं ना, पहला चरण या चरम, जो भी, चरम तो वो होता है स्किन। तो पहला चरण आप क्या करेंगे? आप लेबर कोड्स करेंगे, ठीक है। लेट्स से यू आर स्टडिंग फॉर 8 आवर्स। अब इट इज ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकल कि आप हर दिन 8 आवर्स पढ़ेंगे, आई नो इट्स नॉट प्रैक्टिकल। कई बार आप 6 भी पढ़ोगे, कई बार आप 9 भी पढ़ोगे, कई बार आप 5 भी पढ़ोगे, कहीं ना कहीं से वो कंपनसेट करोगे। आई नो आप दूसरे एग्जाम्स की भी प्रेप कर रहे होंगे, सो आपको अपना स्ट्रैटेजी उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि मुझे किस टाइम को कितना एग्जाम को क्या इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। कौन, अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो कौन से ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स है कि भाई इसको तो मैं करूंगा तो मेरी यूपीएससी की भी प्रेप हो रही है, तो बचा क्या, ठीक है। नाउ, सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद दिस, राइट, यू कैन डू अकाउंटेंसी, ठीक है। ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस हम बाद में करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस हम बाद में करेंगे, प्लस व्हाट, हाँ, आइदर क्वांट और इंग्लिश, ठीक है। लेट्स से आपकी 30 डेज है, आप उस तरीके से 15 डेज मान लो आप क्वांट करते हो, ठीक है, और 15 डेज में लेट्स से आपने 10 टॉपिक्स ऑफ क्वांट कर लिए। वाई 10? क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक दिन में एक टॉपिक हो, 2 दिन भी लग सकते हैं एक टॉपिक को, छोटा टॉपिक है, प्रॉफिट एंड परसेंटेजेस आप एक दिन में 2 कर सकते हो। नंबर सिस्टम मे टेक 4-5 डेज, करेक्ट। सिमिलरली, राइट, लेट्स से 15 डेज यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर इंग्लिश, ठीक है। तो आप यू कैन पिक आइदर ऑफ दिस, यू कैन पिक। और क्वांट एंड इंग्लिश ऐसी चीज है जो आपको टिल द एग्जामिनेशन प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। प्रैक्टिस छूट गई तो सब हो जाएगा। जिस तरीके से आप टॉपिक्स को रिवाइज करोगे तो आपको इस तरीके से ये चीज करनी पड़ेगी। सो इन दिस मैनर, राइट, एंड इन दिस मैनर, लेट से आपका अकाउंट ज्यादा छोटा है, राइट, आई हैव मेड, राइट, आई एम जस्ट होपिंग कि मैं 25 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट कर दूंगी लेबर कोड्स, ठीक है। 5 डेज यू स्टिल हैव इन हैंड्स। सिमिलरली लेट्स से अज्यूम 25 यहाँ हो जाएगा, 5 डेज में इजीली गवर्नमेंट स्कीम्स हो सकती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक पर्चा पकड़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स मैं ही लेती हूँ, तो आपको बस, एंड आई मेक श्योर वो क्लास में ही क्रैम हो जाए, आई टेक लॉट ऑफ मॉर्निंग्स एंड क्रैमिंग। तो आप उस तरीके से आपके ये 65 क्वेश्चंस
आपके ये कवर हो जाएंगे फॉर द वेरी फर्स्ट मंथ. दीज आर द हाइएस्ट यू कैन से स्कोरिंग टॉपिक्स. स्टैटिक भी होते हैं, लेबर भी, अकाउंटेंसी भी स्टैटिक होता है, क्वांट इंग्लिश स्टैटिक होता है. कुछ इसमें करंट एस्पेक्ट, डायनेमिक एस्पेक्ट नहीं पूछा जाता है. ईपीएफओ से 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे करंट एस्पेक्ट से विद रिस्पेक्ट टू द लेबर कोड्स. ठीक है, तो यू हैव टू स्ट्रेस दीज आर योर प्रायोरिटी टॉपिक्स जिनके बिना आपका एग्जाम नहीं निकल सकता, जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो. दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर ऑल दीज 5 सब्जेक्ट्स. ठीक है, विल कीप ब्रिंगिंग द पीवाईक्यूज, डिस्कशंस एंड ऑल. ठीक है, डिटेल्ड एंड एवरीथिंग. हाउएवर यही बहुत डिटेल हो रहा है. चलिए, नाउ सेकंड थिंग is this. These are the primary subjects. When I say primary subjects, that means you cannot ignore these subjects. That means you have to do it. But उसमें फिर आपको क्या करना है? You have to focus this on October. In October, ठीक है, ये आपको अक्टूबर में फोकस करने हैं. Why अक्टूबर मैम? क्योंकि देखो, these are those subjects which आपने कभी नहीं करे हैं. ठीक है, क्वांट रीजनिंग प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, मार्क्स ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने किया है कि आप उसको बारी बारी तीनों मंथ आप उसको रिपीट करेंगे. बट दीज आर दो सब्जेक्ट्स विच कैन क्रिएट फियर, जो ज्यादा स्कोरिंग भी है, स्टैटिक भी है, करंट भी नहीं जुड़ा हुआ है, जिसकी रिवीजन आपको 4 बार लगेगी. हो सकता है पॉलिटी की 1 बार लगे क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ लिया है, हो सकता है 2 बार लगे, बट इनकी तो रिवीजन बहुत बार लगेगी ना. तो आप जितना पहला करोगे उतनी बार उसको रिवाइज करते रहोगे. करेक्ट. देन हाँ, तो टॉकिंग अबाउट पॉलिटी. ठीक है, टॉकिंग अबाउट दिस ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस विल हैव 5 क्वेश्चंस. ठीक है, पॉलिटी विल हैव 9 to 10 क्वेश्चंस. कंप्यूटर अगेन लास्ट टू लास्ट टाइम बहुत ज्यादा आए थे, इस बार आई थिंक 7 कुछ इतने आए होंगे, ज्यादा नहीं आए थे. एंड जनरल साइंस विच मीन्स पीसीबी, वहां से भी आपको 8-9 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं ना. ठीक है, तो अब आपको ये आपके प्राइमरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. ठीक है, आप क्या करेंगे? यू विल पिक पॉलिटी, एंड पॉलिटी लेट्स से यू डू इन 15 डेज. चलो, अब हम क्या करते हैं, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस को हम लास्ट में कर सकते हैं, 2-3 दिन. If you give only 4 days for both these, that will happen. ठीक है, let's focus on science, computer and polity. ठीक है, let's focus on science, okay, computer, ठीक है, and polity. Now you have to divide, ठीक है, your thing. अब देखो, in science I would ask you to do chemistry first. ठीक है, कहीं पे भी बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल है, देखो हर चीज, तो ये मत सोचना कहाँ से करना है मैम, आपको बस पता होना चाहिए बेसिक केमिस्ट्री आपको कंप्लीट करनी है एंड एप्लीकेशंस. ठीक है, अब सबसे पहले आप केमिस्ट्री करेंगे. ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है, देखो फिजिक्स और बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो इक्वल आते हैं, केमिस्ट्री के ज्यादा आते हैं. इफ यू फाइंड फिजिक्स इजी, डू फिजिक्स. इफ यू फाइंड बायोलॉजी, डू दैट. फिजिक्स का मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, एंड इसका मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि इसका जो कॉस्ट benefit ratio है that is very low, very low. So if you feel that I'm not from a science background student and वहां से 1-2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, max to max 2 आ रहे हैं, so you can skip physics also. Practical approach. आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये तो रूल है जीवन का भी, सब कुछ नहीं पा सकते, सब कुछ नहीं मिल सकता, या जो भी है, या सब कुछ, इवन एनी अदर एग्जाम, एवरी एस्पिरेंट हर पूरा 100% सिलेबस नहीं करके जाता. सो आई वुड एडवाइस यू टू डू केमिस्ट्री फर्स्ट, देन यू कैन डू बायोलॉजी. बायोलॉजी में भी कोर बायोलॉजी पूछी जा रही है. ठीक है, तो ये, एंड इफ आई कंपेयर, नाउ लेट मी कंपेयर फिजिक्स, जैसे इन दोनों को मैंने कंपेयर किया है सब्जेक्ट इसमें ही. इफ आई कंपेयर साइंस एंड पीसी, तो आई पर्सनली फेल्ट, जब मैंने प्रिपेयर किया था, मैं साइंस बैकग्राउंड की नहीं हूँ, मुझे दोनों ही टफ लगते हैं. आई पर्सनली फेल्ट दैट दिस वाज मोर डुएबल. ठीक है, दिस वॉज मोर डुएबल. अगर आपने एक बार बेसिक एस्पेक्ट उठा लिया, ठीक है, तो उनका जो लिमिटेशन है, यहाँ पे जो सिलेबस है, राइट, यहाँ पे आपको 3 बड़े सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे. इसका जो सिलेबस है वो काफी लिमिटेड है. ठीक है, इसका सिलेबस काफी लिमिटेड है, राइट, और आप नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ पढ़ सकते हैं. ये ज्यादा स्कोरिंग है, ये ज्यादा डुएबल है, तो यू कैन नॉट इग्नोर दैट. करेक्ट. सो व्हाट शैल बी योर पार्ट ऑफ द डे? योर शैल फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे शैल फोकस ऑन द रिविजन. कौन सा रिविजन मैम? जो हमने सितंबर में किया था. सितंबर में किया था, अगर आप वो नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? आपको लेबर कोड्स पढ़ने पड़ेंगे. करेक्ट, आपको लेबर कोड्स जो आपने पढ़े थे, आपको उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा. अकाउंटेंसी आपको रिवाइज करना पड़ेगा, यानी कि आपका हाफ डे. अब मैम हाफ डे रिवाइजन, हाँ भी हाफ डे रिवाइजन नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा. लेट्स से योर स्टडी फॉर अब नाउ यू आर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट. मुझे ऐसा लगता है फिर आपकी नंबर ऑफ आवर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, आपकी सिटिंग थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी. लेट्स से यू स्टार्ट फ्रॉम 4, मे बी यू विल रीच टू 5, मे बी 5.5, मे बी टू 6, एंड यहाँ पे इन अक्टूबर मे बी यू विल रीच टू 9 आवर्स. सो इन दैट 4 आवर्स आपको रिविजन को देने ही पड़ेंगे. ठीक है, तो मेरा तो ये रूटीन होता था, मैं आगे पहुंचती ही नहीं थी जब तक कि मैं पहले वाला रिवाइज नहीं कर लेती थी, और ऐसे करके एक टॉपिक शायद 5 बार रिवाइज हो जाता था. तो आपका हाफ डे क्या जाना चाहिए? इस पे जाना चाहिए. ठीक है,
then you shall start with what? Polity. This, sorry. हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी आप पहले कर सकते हैं, फिर आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर कर सकते हो, और फिर आप साइंस कर सकते हो। अगर आपका हाफ डे किस पे चला गया है, रिविजन पे चला गया है, हाफ अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, देन योर हाफ अमाउंट ऑफ टाइम शुड बी विद द पॉलिटी। क्यों? क्योंकि इजी आता है, स्कोरिंग आता है। एक बार बेसिक्स क्लियर तो सब तमाम खत्म। वो वहाँ पे क्वेश्चंस भी ड्यूएबल होते हैं, सारे ड्यूएबल नहीं होते हैं। कभी मैम ने बोला है कि सारे ही कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, सारे ड्यूएबल नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 इंच और यू कैन से 1 आवर यू हैव टू अगेन प्रैक्टिस व्हाट? क्वांट एंड इंग्लिश। क्योंकि अगर आपने ये छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा? फर्स्ट 15 डेज, ठीक है, फर्स्ट 15 डेज ऑफ योर अक्टूबर विल गो दिस वे। फर्स्ट 15 डेज इज टू मच फॉर द पॉलिटी, ट्रस्ट मी। 15 डेज में अच्छे से, अगर आप बिगिनर भी हो और अगर आप फिर से पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई छूटी हुई है, और यूपीएससी एस्पिरेंट वालों को तो देखो आती है, तो ये वाला अपना टाइम वो वहाँ डिवोट कर सकते हैं। फर्स्ट 15 डेज इज टू मच फॉर योर पॉलिटी, है ना, क्योंकि हम बफर भी रखेंगे। लेट्स से आपने कभी पढ़ाई नहीं की, कभी तबियत खराब होगी, कभी मैंने क्वांट रीजनिंग ज़्यादा कर लिया क्योंकि मेरा वीक है, या मैंने रिविजन को ज़्यादा टाइम दे दिया, करेक्ट। नाउ लास्ट 15 डेज ऑफ योर अक्टूबर, ठीक है, लास्ट 15 डेज ऑफ योर अक्टूबर शैल बी डिवोटेड टू दीज सब्जेक्ट्स विच इज दिस एंड दिस। एंड ट्रस्ट में लास्ट 15 डेज में आप 7 डेज में इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर तो बहुत बहुत क्या बोलते हैं, जल्दी हो जाता है। 7 डेज में अगर आप दबा दब करोगे बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, फास्ट मैनर में। एंड देन डू केमिस्ट्री, डू बायोलॉजी, फिजिक्स ऑप्शनल रखना, इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेना। केमिस्ट्री तो देखो कर ही लेना, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स एस्पेक्ट साइंस ज़्यादा पूछी जा रही है। सो आई बिलीव अगर आप केमिस्ट्री भी कर लेते हो और जो साइंस आपके करंट अफेयर्स में भी आ रही है, तो यू आर गुड टू गो विद इट, ठीक है, यू आर रियली गुड टू गो विद इट। इस तरीके से आपके, ठीक है, इस तरीके से आपके, इफ़ यू नोटिस यहाँ पे 9 + 8 लेट्स से +9, ठीक है, तो 9 3 ज़ा 27, सो लेट्स से 25 to 27 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे इन योर मंथ। 65 पहले हो गए थे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 25 यहाँ हो गए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ओके, ठीक है, वैसे तो 65 लेट्स से 27 क्या हो गया, हाँ, तो मतलब 90 92 95 क्वेश्चंस आपके 2 मंथ्स में आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 120। मैम बाकी के क्वेश्चंस क्या होगा अभी बताएंगे आपको, बाकी के क्वेश्चंस का भी, ठीक है। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दिस, व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, व्हाट शैल बी योर प्रायोरिटी, पॉलिटी शैल बी योर प्रायोरिटी, देन टेक कंप्यूटर साइंस और साइंस और कंप्यूटर साइंस। बट कंप्यूटर साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इट इज मोर स्टैटिक, स्कोरिंग ड्यूएबल होता है देन द साइंस। फिर आप साइंस में भी क्या उठाएंगे? केमिस्ट्री उठाएंगे, ठीक है। साथ के साथ क्या करेंगे? रिविजन, हाफ डे रिविजन, half day revision, half day polity, half day revision, half day science, and what this with content reasoning. चलिए, okay, next. Now these are secondary subjects. अब देखो इस secondary subjects में हम आ गए अब नवंबर में, ठीक है, we are in November now. Now, see, इकोनॉमी में ऐसे डायरेक्ट इकोनॉमी की चीजें नहीं आई हुई हैं। अगर आप PYQs उठा के देखेंगे, इट इज मोस्टली अबाउट स्कीम्स, इट इज मोस्टली अबाउट रिपोर्ट्स। 2 रिपोर्ट पूछी हुई थी, ठीक है। फिजिकल हेल्थ मैंने शायद डालना भूल गया है, पता नहीं। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पूछा हुआ था, उसके इंडिकेटर्स, बस इंडिकेटर्स पूछे थे। और लास्ट टाइम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पूछा हुआ था, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर। ये दोनों आप PIB और करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमी का ऐसा कुछ स्टैटिक नहीं पूछा हुआ था, करंट एस्पेक्ट ही यहाँ पूछते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं या अगर आप एक बैंकिंग और एग्जाम एस्पिरेंट है, आई विल नॉट आस्क यू टू डू इकोनॉमिक बेसिक्स, आई विल नॉट। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, और अगर आपको लगता है जो भी करंट एस्पेक्ट से, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम रीडिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो थोड़ा सा आपको पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या होते हैं। इतना आप गूगल भी कर सकते हो। आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड 2-3 क्वेश्चंस के लिए आप पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ोगे और फिर क्वेश्चंस आएंगे वहां से 2-3, उस 2-3 लेट्स से 4 आए, 4 में से भी अगर 2 आपके करंट में कवर हो रहे हैं, सो आई डोंट थिंक देयर इज अ सेपरेट टाइम नीडेड फॉर इट, करेक्ट। 23 और 5 में तो देखो ऐसा हुआ है, कभी आप बोलोगे अरे इतने क्वेश्चंस आ गए, मैंने तो बोला मत करो, ठीक है। हाउएवर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो दे विल आस्क यू टू डू द इंटायर बुक ऑफ, जो भी बुक्स के नेम्स हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। बट अगर आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है तो यू हैव टू रिलाई ऑन PYQs एंड दिस इज हाउ इट इज, करेक्ट। नाउ फिर आ जाइए आप, ठीक है, फिर ये हो गया आपका इकोनॉमी, ठीक है। अब स्टैट से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। मुझे तो लगता है कि स्टैटिस्टिक्स पे अगर पूरा पढ़ोगे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें आपका ये आता है, क्या बोलते हैं, मीन मीडियन मोड विच इज अ पार्ट ऑफ क्वांट। हम इसको लास्ट में देखेंगे या देखेंगे ही नहीं, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, नॉर्मल चीजें। देखो ये आपका क्या है, पार्ट है किसका, सिलेबस का। 23 में 2 क्वेश्चन आए थे, एक पॉपुलेशन पे एक ग्लोबलाइजेशन पे, 25 में आया नहीं। लेकिन यहाँ पे जो 23 में क्वेश्चन आए हुए थे दैट वाज वे टू इजी, किसी को बेसिक भी पता है पॉपुलेशन ग्लोबलाइजेशन का, बहुत ईजी था,
मतलब कर सकते हो आप विदाउट पढ़े, ठीक है। एनवायरमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे, परमाफ्रॉस्ट एंड पंचामृत स्ट्रेटजीज, दैट इज अगेन कवर्ड इन करंट अफेयर्स, ठीक है, दैट इज अगेन कवर्ड इन करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे आपको अलग से कोई एफर्ट नहीं डालना है, कहाँ पे, इन चीजों पे, इस पे और इस पे आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स करना है। इसका मतलब अब मेरा रह गया मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स। चलो इन तीनों के बारे में बातें कर लेते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर and current affairs. Let me just have a sip of water, guys. See, if you see this कंबाइंड सिलेबस है आपका ईपीएफओ में, 4 क्वेश्चंस आपके यहाँ से हुए थे, 4 आपके यहाँ से हुए थे। इन 4 क्वेश्चंस में हो सकता है मैं यहाँ 2 कर पाऊँ, यहाँ पे मैं 1 ही कर पा रही थी। लेट से आपने बहुत पढ़ाई कर ली, यहाँ आप 3 कर पाओगे, यहाँ स्टिल आप 1 ही कर पाओगे, या लेट से 2 इजी थे इस बार। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो आपका ये सेकेंडरी सब्जेक्ट होगा विच विल यू डू इन नवंबर, ऑब्वियसली स्टिल यू हैव टू डू द रिवीजन, राइट। आपका रिवीजन चलता रहेगा, आपके नंबर ऑफ आवर्स यहाँ इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, जिस तरीके से हमने अक्टूबर में हाफ टाइम अपने सब्जेक्ट को दिया था, हाफ रिवीजन को, और क्वांट इंग्लिश हमने किया था, इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, 1/4 of our day shall be devoted to our main subjects. Why मैम? Because आपने ऑलरेडी 95 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर ली है, 95। अगर आप वो रिवाइज नहीं करोगे, इस पे आप ज़्यादा टाइम लगा दोगे टू जस्ट गेट मोर दैट स्कोर, ठीक है, इस पे आप 1/4 ही टाइम लगाओगे, तो बाकी का जो 3/4 टाइम है दैट शैल बी ऑन योर रिविजन ओनली, या आपका बफर है अगर आपका कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, 3/4 ऑफ द टाइम शैल बी ऑन योर रिविजन, राइट। अ पार्ट ऑफ इट टू द क्वांट रीजनिंग, अगेन इंग्लिश प्रैक्टिस। नाउ 1/4 ऑफ द टाइम शैल बी ऑन दिस, ठीक है। उसमें भी सबसे पहले, ठीक है, अब कई बार क्या होता है, करंट अफेयर्स वो जो है बच्चे साथ के साथ करना पसंद करते हैं, दैट इज ऑलरेडी अप टू यू। आप अगर करंट अफेयर से लिंक बना होता है बच्चों का, तो वो छोड़ते नहीं है, वो साथ के साथ करते ही रहते हैं, तो यहाँ पे आपको नथिंग न्यू है ना। लेकिन अगर आप, ठीक है, आई वुड पर्सनली सजेस्ट दिस थिंग ओनली कि आप हर 5-4 दिन में करंट अफेयर्स का टॉपिक उठा ही लेना, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी सितंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम द सितंबर, हर 3rd या 4th डे थोड़ा सा आप टाइम निकाले ना कि आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं। अब करंट अफेयर्स में भी क्या करना है, सम टाइप ऑफ करंट अफेयर्स आर यूपीएससी करंट अफेयर्स, जो विजन की आती है, नहीं आता, उतना आता ही नहीं है, ना तो उतना डिटेल आता है, ना ही ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपीएससी वाला बच्चा शायद वो करंट अफेयर्स कर भी ना पाए जो ईपीएफओ में आता है, ठीक है। क्या वो बैंकिंग टाइप है? देखो बैंकिंग टाइप भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो बैंकिंग टाइप का करंट अफेयर्स है, बट मोस्टली ड्रिवन टू द बैंकिंग ओनली, थोड़ा सा फैक्चुअल रहता है बैंकिंग का करंट अफेयर्स, थोड़ा सा फैक्चुअल रहता है, बट हमें क्या करना है, 10% 10 आप ये बोल सकते हैं होएगा द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट इज बीइंग आस्क्ड इज बैंकिंग ओनली, बट ना इतना ज्यादा फैक्चुअल नहीं होता है, बट येस सिंस दे हैव आस्क्ड अबाउट अवार्ड्स, नोबेल प्राइज, स्पोर्ट्स, तो फैक्चुअल भी हो सकता है। तो आपको बैंकिंग टाइप ऑफ के करंट अफेयर्स यहाँ पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग सर्टेन स्कीम्स क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग सर्टेन इकोनॉमी एस्पेक्ट, ठीक है। तो आप, ठीक है, या तो आप हर हफ्ते, या तो आप ऐसे कर लो कि भाई संडे को ज्यादा पढ़ाई करूंगा या करूंगी, ठीक है, तो हो सकता है मैं सैटरडे और संडे को 2+2 लेट से 4 आवर्स मुझे करंट अफेयर्स करना है। लास्ट टाइम के लिए मत छोड़ो, क्योंकि मिनिमम 6 मंथ्स तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम 6 मंथ्स तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये देखना, ठीक है, करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको आई थिंक 8 to 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, बट हमारे कोर सब्जेक्ट से ज्यादा आते हैं, 8 to 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज मिनिमल, मिनिमल नहीं, मिनिमल तो आर्ट एंड कल्चर का है, बैलेंस्ड है, करोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे, सो इट्स बेटर आप कर लेना। लास्ट टाइम मैंने नहीं करे थे तो मुझे काफी नुकसान हो गया था, ठीक है। तो चलिए आर्ट एंड कल्चर, अब देखो, अब मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री, आप मॉडर्न हिस्ट्री करोगे, ठीक है। अब आर्ट एंड कल्चर नहीं करना है मैम, करना है, आई टेल यू व्हाई। सी, इन आर्ट एंड कल्चर आपको सारा आर्ट एंड कल्चर नहीं करना है। आइडियली आपको एंशिएंट हिस्ट्री करनी होती है, आपको क्या मिडाइवल हिस्ट्री करनी होती है, फिर आपको आर्ट एंड कल्चर करना पड़ता है, विच मीन्स लेट्स से बुद्धिज्म, जैनिज्म, केव आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, फिर आपको पोट्री, पेंटिंग्स, है ना, डांस, म्यूजिक, न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप कितना ही पढ़ लो, आपका यहाँ पे क्वेश्चंस कहीं से भी उठ के आ जा रहे हैं, आप मेहनत इतनी कर रहे हो और आप 1 क्वेश्चन भी ना कर पाओ, 2 क्वेश्चन भी ना कर पाओ, तो फिर फायदा क्या है उस चीज का। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप कंप्लीट भी नहीं छोड़ोगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इजी क्वेश्चन भी आप ना कर पाओ, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था दैट वाज अबाउट ब्लैक पगोडा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज हियर, राइट, बस एक चीज कर लेना, दैट इज योर दिस इज टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर और उसका टाइमलाइन क्रोनोलॉजी, केव आर्किटेक्चर जैसे कि आपके ये भीमबेटका केव्स और रॉकेट, ठीक है, प्लस बुद्धिज्म, जैनिज्म। अब बुद्धिज्म जैनिज्म का बेसिक्स, ठीक है, नॉर्मली क्या क्या होता है उसके अंदर, ठीक है, प्लस उनके बुद्धिज्म का जो आर्किटेक्चर होता है हमारा, जो ये स्तूपास होता है और ये हर्मिका होता है, ठीक है, और दक्षिणापथ, ठीक है, तो ये आप कर लेना,
वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि यहाँ से आई विड से टेम्पल आर्किटेक्चर और इन सारे से मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा ही आएगा तो वेल एंड गुड, आप वो चीज़ कर पाओगे। बाकी की चीज़ें ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को तो बहुत फैसिनेटेड हूँ, मेरे को आर्ट एंड कल्चर आता है, मेरा कौन सब्जेक्ट है, मैं तो करूँगा, देन इट्स अप टू यू, बट आई वुड एडवाइज नॉट टू डू गो इन डिटेल, बहुत ज़्यादा इनग्रोस होकर आपको आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, आई विल जस्ट कंक्लूड वट एवर आई सेड, ठीक है। सो September, right, we are going to do labor codes, we are going to do accountancy, plus we are performing what, quant, reasoning plus English, ठीक है, and government schemes. Current affairs you can do on Saturday, Sunday. Coming to the October, right, and November. In October what we were doing first of all what, computers और polity पहले करेंगे 15 days, then computers 7 days, and then chemistry पहले करेंगे, then biology, and then physics. टाइम बचा तो फिजिक्स, अदरवाइज विल रिलाई ऑन द केमिस्ट्री एंड करंट अफेयर के एस्पेक्ट पे, ठीक है। इन नवंबर वी विल फोकस ऑन फर्स्ट ऑन करंट अफेयर्स हमारे साथ के साथ चलेंगे। ऑब्वियसली हमारा 3/4 टाइम, अब यहाँ पे 3/4 टाइम जो आपका रिवीजन पे चला जाएगा, बाकी का टाइम ऑब्वियसली देन यू हैव टू डू व्हाट, करंट अफेयर्स रिवीजन प्लस नॉर्मल रिवीजन जो भी आपने पढ़ाई की है, एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री, फिर आप आओगे आर्ट एंड कल्चर पे, ठीक है। आई होप नाउ आई एम वेरी क्लियर कि कौन से सब्जेक्ट्स पे, एनवायरनमेंट पे, इकोनॉमी पे, स्टैट्स पे, पॉपुलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ मुझे रह गई है, आई एम सॉरी, 3-4 दिन का काम है ये, दैट इज ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, वो हम करेंगे, ऑब्वियसली आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वेरी इजी, ठीक है। सो दिस वॉज इट, एंड आई नो दिस इज अ वेरी लॉन्ग वीडियो, अगर I hope you like the session and this is quite fruitful to you, and pose that हमारा अगर आपको you want to take some kind of course, right, है ना, कोई कोर्स लेना है तो लिंक्स आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेबर और सोशल सिक्योरिटी का जो भी जिस्ट है वो आपको अगेन would be provided in the link, and this took a lot of research and analysis, what to do, how to do, when to do, and all of that. I hope ये आपके लिए काम आएगा, and thank you very much, सोनिका।